The first session is on transformative research methodologies, possibilities, and practice. And the session will be followed by a Q&A as well. So please join me in welcoming our incredible speakers for the day. I'll call their names out and please do come onto the stage then. Avinash Kumar, a community developer at Breakthrough from Jharkhand. Ganori Vishwakarma, independent consultant from Jharkhand. Kanchan Devi, enumerator from Jharkhand. Manjusha Madhu, senior researcher at Breakthrough. Shikha, enumerator from Jharkhand. Please put your hands together in welcoming them for the session today. The discussion will be moderated by Manjusha. The stage is yours. This session is essentially going to build on the methodology aspect of a recently completed study in Jharkhand. The research report is available at the registration desk, and I'm sure all of you must have got your copies as well. It's available both in English and in Hindi. We thought that this session is going to be a very organic, sort of a conversation piece. With some people who are fundamental and key to this entire research process. We have two of the enumerators who were part of the study, Shikha and Kanchan. We have Avinash, who is part of the fantastic field team that supported us throughout the entire study. And we have Ganori, who was a fantastic asset for the entire study as well. And one important thing that we felt was very unique for the study was that all of them come from Jharkhand. So they're intimately aware of the socio-political issues, the kind of struggles that the state has seen, and therefore we thought that is an added value to the kind of study that we wanted to do. And something that we were really cognizant of, the fact that we are Delhi-based organizations, and something that we have seen repeatedly, that urban centers tend to dominate the way knowledge production happens, the kind of voices that get to say what needs to be said. And if you look at the agenda, the session note, you will also see that we're looking at ideas of custodianship, who become experts, how do they articulate, who gets to articulate people's concerns, and the spaces we talk about it, right? So in a way, this today's session is going to touch upon some of these aspects. Sort of starting off, Richa, can you start the PPT, please? So the study, just to give a quick, like a two-liner introduction, the study essentially explored how gender equity programs were working on the ground, and we wanted to focus on systemic social exclusion. We particularly focused on Dalit and Adivasi adolescents, and we wanted to understand that, of course, there is a gender equity framework that exists. Is it working for adolescents who come from historically marginalized communities? If it's not working, what additional measures do we need to take to keep them in school? The study also foregrounded and probed structural factors, particularly in a state like Jharkhand, that are detrimental for adolescent or girls' education. It builds on Breakthrough's core work, which is our TKT program, which is our Taro Ki Toli program. And we wanted to look at it from, as I mentioned, a question of and a lens of marginalization, right? To start off, I was hoping कि अविनाश आप क्योंकि आप से बेहतर इसके बारे में अब कोई और हमें समझा नहीं पाएंगे, आप थोड़ा अभी हमारा जो झारखंड में खास करके काटकम संडी और टाटीचरिया में जो हमारा इंटरवेंशन है और जो हमारे ओल्डर एडोलेसेंट्स के साथ जो इंगेजमेंट है, उसके बारे में थोड़ा अगर जेंडर इक्विटी प्रोग्राम को थोड़ा एक्सपैंड करके हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज़। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अविनाश है और मैं ब्रेकथ्रू झारखंड से, और मैं डीप ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट का काम करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी में बेसिकली किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत तारो की टोली प्रोग्राम को हम लोग रोल आउट करते हैं स्कूल्स में। जो हमारा उज्ज्वल तारा जो 11 साल से 14 वर्ष के बच्चों के किशोरियों के साथ हम लोग काम करते हैं, और साथ ही समुदाय में 15 से 18 वर्ष की किशोर किशोरियों के साथ और 19 से 25 वर्ष के साथ यूथ के साथ हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं डीप ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। और साथ ही हम लोग जैसे स्कूल्स में हम लोग एडोलसेंट के साथ तारों की टोली कार्यक्रम के तहत काम करते हैं, जिसमें हमें बेसिकली स्कूल में जब फर्स्ट टाइम ग्रास रूट पे काम करना हुआ तो
तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि एज ए मेल इतना मतलब कि एडोलसेंट के साथ पास में जाकर इस तरह का एक स्पेस क्रिएट करना वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और साथ ही जैसे कि स्कूल्स में तारों की टोली कार्यक्रम के तहत मतलब एक टीचर्स को भी उस प्रोग्राम के बारे में फ़ील कराना कि क्या है ये, क्यों, क्या कारण है, ये क्यों ज़रूरी है, इसको लेकर हम लोग कम्युनिकेट करना वो थोड़ा आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एडोलसेंट वहाँ के टीचर्स बोलते हैं कि ये तो हम करते ही हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। तो ये उनको समझाना और एज ए वास्तविकता में क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो मतलब एक दूसरे को एक एज ए सिनेरियो के तहत उनको इमेजिन के तहत उनको समझा पाना वो थोड़ा सा टफ था। बट मैं इसको लेकर, कुछ स्कूल्स ने तो डायरेक्ट मना कर दिया, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें चैलेंजेस आने लगी। तो फिर कहीं ना कहीं टीचर से बात करना, प्रिंसिपल से बात करना, तो फिर वो कम्युनिकेट करने के बाद फिर वहाँ तारों की टोली कार्यक्रम के बारे में, किस तरह का कार्यक्रम है, कैसे हम एक एडोलसेंट को एक स्पेस और एक फ्री इन्वायरमेंट दें जहाँ वो अपने आप को ग्रो कर पाएँ, लाइफ स्किल के बारे में वो समझ पाएँ। तो ये चीज़ें हम लोग ने एक रैपो बिल्ड किया और कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करना। जब बात करते हैं ब्रेक थ्रू ट्रस्ट की, तो ये सारा कुछ ट्रस्ट पे चल रहा है। बिना ट्रस्ट के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर एज ए टीचर्स के साथ हमने ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर उनके साथ जाकर हम लोग क्लासेस में जाकर एक ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टीचर्स का भी रोल रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ रहे हैं, तभी जाकर एडोलसेंट एक हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए। और कहीं ना कहीं वो भी, लेकिन स्टार्टिंग में ये आसान नहीं था, क्योंकि अब समुदाय में जाते हैं तो ऐसे भी समुदाय हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे मुंडारी भाषा यूज़ होता है। तो उस क्षेत्र में जाकर उनकी भाषा में कम्युनिकेट करना वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो एटलीस्ट मैं भी इंटरेक्ट किया उनसे, उनको बताया गया कि किस तरह से टीचर्स आकर काम करते हैं, फिर टीचर से फिर कम्युनिकेट किया गया, तब कहीं ना कहीं हम उनके लैंग्वेज को भी रिलेट कर पाए। उनसे पूछे कि जैसे तारों की टोली, तारों को क्या कहते हैं आप लोग, तो फिर वो रिलेट करते हैं कि तरेंगन बोलते हैं। तो वो चीज़ें, ये कुछ वर्ड्स हैं जो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग कर पाए। तो और ये टीचर्स के भी सपोर्ट से हो पाया, ताकि फिर हम लोग वहाँ पे इजीली स्कूल्स में टिकट डिलीवर्ड कर पाते हैं। और अब कभी भी जाना होता है तो एटलीस्ट टीचर्स को बोल देते हैं, तो वो तुरंत हमको परमिशन दे देते हैं। तो ये चीज़ कर पाएँ। लेकिन स्टार्टिंग में ये एकदम आसान नहीं था हमारे लिए, खासकर मेल पर्सन के लिए। तो ये चीज़ें, और कहीं कहीं जब स्टार्ट भी किए गए थे तो फिर हमको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो हमारे ब्रेक थ्रू फीमेल जो टीम मेंबर है उनके साथ बहुत दिनों तक हम साथ में गए, एक रैपो बिल्ड कर पाए कि ये एकदम आपके लिए ही प्रोग्राम है और एक फ्री स्पेस आपको देता है जहां आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड किया और फिर धीरे धीरे फिर खुद जाने लगे और फिर ये चीज़ें हो पाई स्कूल्स में। और साथ ही फिर हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं जहाँ 15 to 18 वर्ष में किशोर किशोरियाँ जो हैं उनके साथ कैसे रैपो बिल्ड कर पाएँ, तो ये एकदम भी आसान नहीं था एज ए मेल पर्सन के साथ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसको कैसे, तो मेरे लिए चैलेंज हुआ। फिर ग्रुप में जब टीम मीटिंग्स होती थी फिर वहाँ पे अपनी चैलेंजेस को रखना, फिर कैसे इसको रोल आउट करना है। फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद फिर बहुत सारी टीम का भी सपोर्ट रहा है कि इसको कैसे किया जाए। तो फिर कुछ टीम मेंबर्स भी हमारे साथ जाते थे, लाइजनिंग कैसे करना है, कैसे उनको कम्युनिकेट करना है, कैसे उन पर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो थे उनके, तो वो भी अब मेल पर्सन के साथ विश्वास बनाना वो बहुत बड़ी चैलेंज है। और एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास नहीं बन पाता है। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि जहाँ चीज़ें हैं जो एक विश्वास को मतलब कि होने नहीं देती है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर कहीं ना कहीं टिकेटी को जब लाया गया वहाँ पे, एक्चुअली टिकेटी हमारे लिए भी बहुत मतलब मैं सोचता हूँ कि टिकेटी अगर पहले होता तो एटलीस्ट मैं और भी कुछ कर पाता तो ये चीज़ें एक्चुअली मैंने टिकेटी को फील किया है
और वास्तविक में टीकेटी अविनाश, थोड़ा वो टीकेटी का कंटेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि हाँ लोगों जिसमें को भी समझ हाँ जैसे तारों की टोली एक जो मॉड्यूल है जिसमें टोटल 2 इयर्स के चैप्टर्स हैं। हर मंथ में एक चैप्टर रोल आउट करते हैं। जैसे मैंने कटकमशांडी में मैं किया तो 8 ग्राम पंचायत में 16 गांव में हमारा टीकेटी का पूरा प्रोग्राम चलता है। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर को एक वीक में एक मंथ में लेकर जाते हैं और ये एक चैप्टर पूरे मंथ में कंप्लीट होता है, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जहाँ हम लोग एस्पिरेशन को लेकर बात करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को बात करते हैं, वायलेंस पे बात करते हैं और कैसे आप अपने मम्मी पापा से नेगोशिएट करेंगे, कैसे अपना एक विश्वास बना पाएंगे। तो ये पूरे चैप्टर्स के तरफ पूरा ओवरऑल एक मतलब कि एस्पिरेशन तक पहुंचने के लिए एक पाथ वे है। उनके सपोर्ट में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग बिल्ड करते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ें समझा पाना एडोसेंट को। लेकिन कुछ होता है कि कम्युनिटी में ये भी चीज़ें देखा जाता है कि एक एक्सपेक्टेशन होता है, आप आए हो तो कुछ दोगे। तो ये चीज़ें होती हैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ने उनके साथ एक ऐसा नेगोशिएशन किया कि ऐसा नहीं है, आपको हम कुछ चीज़ें देंगे तो कितना दिन तक वो रहेगा और नॉलेज आपके पास कितने दिन तक रहेगा। तो वो चीज़ें रिलेट करना पड़ता है तो जाके वो समझ पाते हैं कि नॉलेज रहेगा तो एटलीस्ट हम कहीं भी रहेंगे तो अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे और एक रास्ता अपने लिए सही डायरेक्शन चूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो हाँ, तो ये आसान नहीं था। तो 15 से 18 वर्ष के किशोरियों के साथ काम करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एज ए मेल पर्सन वो क्या सोचते हैं, कैसे वो कंफर्ट जोन आ पाए। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं हम लोग ये रैपो बिल्ड करने में हम लोगों ने टीम में बात किया। फिर हम लोग FLW जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जैसे आशा सेविका, इन लोगों से हम लोग ने अपने प्रोग्राम को लेकर उनको ये बताया कि तारों की टोली एक्चुअली प्रोग्राम है जिसमें हम किशोरियों को लाइफ स्किल के बारे में और सही और गलत में क्या फ़र्क होता है वो कैसे पहचानेंगे, अपने माता पिता से कैसे बात करेंगे और खुद आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग ये ट्रेनिंग के माध्यम से करते हैं। और ये पूरा तारों की टोली जो कार्यक्रम होता है एक ग्रुप्स के साथ हम लोग 2 साल तक रोल आउट करते हैं, हर तरह से ट्रेनिंग देते हैं उनको सशक्त बनाने में। तो वो चीज़ें और कहीं ना कहीं हम लोग एस्पिरेशन पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हो तो हेल्थ पे भी बात करते हैं। तो हेल्थ भी उनसे कनेक्ट करके कैसे हम आशा के साथ हेल्थ के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो कुछ अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। तो ये चीज़ें हम लोग कम्युनिटी में एक ट्रस्ट बिल्ड किए पहले FLW के साथ, फिर उनके साथ फिर काम करने के बाद फिर हम लोग एडोलसेंट के साथ बैठे, फिर उनके साथ टीकेटी डिलीवर और उनके साथ ही बैठते थे क्योंकि उनके साथ विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे एज ए मेल पर्सन के पास तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब हमें प्रोग्राम भी डिलीवर करना है, उनको उस तरह से तैयार करना है। तो वो चीज़ें हो पा रहा था। तो फिर FLW के साथ फिर हम उनको इंगेज करने के बाद फिर एडोसेंट को फिर हम लोग ट्रेनिंग टीकेटी का स्टार्ट किए। तो फिर कहीं ना कहीं अब क्या है कि अब मेन चैलेंज आया पेरेंट्स। तो वो उनको भी बताना है कि कैसे टीकेटी क्या काम करता है, किस तरह से हम लोग एक सशक्त बनाने को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और सशक्त होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब चीज़ें पहले से बदल गई है, सारा डिजिटल हो गया है। तो अब चीज़ों को हमें भी बदलना होगा, क्योंकि पहले था कि चल जाता था लेकिन अब है कि नहीं चल पाता है। तो एटलीस्ट अपने आप को तैयार करना उस हिसाब से। तो पेरेंट्स भी आना स्टार्ट हुए तो उनको भी लगा कि नहीं, ये जो तारों की टोली जो कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें अपने एडोलसेंट को भेजना ज़रूरी है। और फिर चीज़ें अब टिकट ही ख़त्म होने के बाद भी उन लोगों से भी कम्युनिकेट किया जाता था कैसे हम काम करेंगे और कैसे आपके साथ भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, आप लोग को भी आना है। तो ये चीज़ें हो पाया और फिर हम लोग इसके बाद फिर उनका विश्वास बन पाया। अब क्या होता है कि एटलीस्ट एक फ़ोन करने से उनके पेरेंट्स से बोलते हैं आप जा सकते हो। और हम लोग टिकेटी का जो सेशंस करते हैं वो उन्हीं के समुदाय में, उनके जो आपका आंगनवाड़ी है
वहीं पे करते हैं, ताकि उनको भी एक ट्रस्ट बिल्ड पर हो पाए कि वो जो जा रही हैं वो इधर उधर नहीं जा रही हैं। क्योंकि गांव में ये चीज़ें होती हैं कि किसी मेल पर्सन के साथ बात करना वो बहुत मतलब गलत माना जाता है। अगर वो किसी से बात कर लिए हैं तो फिर ये चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत था कि कौन है नहीं है, तो काफ़ी चैलेंजेस होते। तो फिर हम लोग यहाँ पे PRI को भी इंगेज करते थे कि हमारे जो PRIs हैं वो कैसे हमारे साथ मिलकर वो काम करेंगे। तो ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं फिर हम लोग उसके बाद फिर हम लोग यूथ के साथ काम करना स्टार्ट किए। वहाँ ग्रुप्स बनाना हो गया। हाँ, तो 19 से 25 के बीच में जो यूथ के साथ हम लोग डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लोग काम करते हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो कैसे अपने मुद्दे को पहचानेंगे, तो फिर उस पर हम लोग काम किए। उसके बाद फिर हाँ, उनका भी एक कंसर्न था कि आप आए हो तो फिर हमें कैसे बेनिफिट्स होंगे, ये यूथ का था। तो ये चीज़ें था। तो फिर उनको भी समझाएं कि जो हमारा काम है इसको कैसे हम सरकार की योजनाओं के साथ कनेक्ट करके, जैसे कौशल विकास योजना है जहाँ स्किल सिखाया जाता है, लाइफ स्किल, और उसके तहत आप वहाँ पे फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको बढ़ने के लिए जो हमारे जो टिकेटी का जो मुद्दा है उस पर कैसे हम लोग समझ बनाएंगे, गांव में कैसे अपने चीज़ों को सही और गलत को पहचानेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग करना स्टार्ट किए। तो ये है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच अविनाश। ये क्योंकि आपकी जो आपने जो एक्सप्लेन किया काफ़ी डिटेल में और विस्तार से अच्छे से समझाया हमें। और हम लोग ये स्टडी में भी देखे थे कि बहुत बार जैसे इक्विटी प्रोग्राम से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भर के आए थे कि उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। हाँ, क्योंकि उनकी इकोसिस्टम, और जैसे अविनाश ने बताया, हम काफ़ी एंटिटीज़ जो इकोसिस्टम है उसकी और अहम एंटिटीज़ है, और ये हम लोग नहीं बाकी सब लोग भी इस एरिया में जो काम करते हैं हम जानते हैं कि अकेले एडोलेसेंस से काम करने से मूवमेंट नहीं दिखेगा आपको। उनकी स्ट्रक्चरल रियलिटी को, उनके आसपास के की एलिमेंट्स को, सच एज पेरेंट्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो जैसे अविनाश ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचर्स है, उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है कि उनका ट्रस्ट लेना और उनके साथ बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और उसके वजह से एंड खास करके जो जैसे ब्रेक थ्रू सोशल नॉर्म्स में काम करते हैं, विच इज़ हम सब जानते हैं इसमें शिफ्ट्स बहुत ग्रेजुअल होते हैं और कभी कभी बहुत एविडेंट भी नहीं होता है, मगर कुछ तो मोमेंट होता है उसमें, है ना। तो वो वाले जो पॉइंट भी इनके आते हैं, और हमारी स्टडी में ये बहुत साफ आए थे कि, और ये 2-3 कोड्स भी हमने डाले हैं इसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पे मतलब ये 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए थे इन स्टडी पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो ये जैसे अविनाश ने बताया था, सेक्सुअलिटी, उनके सेक्सुअलिटी को लेके, उनके मोबिलिटी को लेके बहुत सिवियर एंड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो और उनके जैसे वो लोग ड्रेस करते हैं उस पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये सब चीज़ों में देयर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्स, देयर एबिलिटी टू स्पीक अप फॉर देमसेल्स, और इंट्रा हाउस होल्ड बार्गेनिंग, जो घर के अंदर और फैमिली के अंदर थोड़ी चीज़ें उनकी राइट्स के बारे में बात करने का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा है ना। बट हम लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सबसे बड़ा एडोलेसेंस के साथ तो होता ही है, बट सबसे ज़्यादा जो हम स्टडी में भी निकल के आते हैं, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ मूवमेंट बहुत बहुत ग्रेजुअल होता है। तो ये और 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोले हैं आपने, जो हम बाद में थोड़े लेटर इन द डिस्कशन जिक्र करेंगे। जो लैंग्वेज बैरियर जो हमारी स्टडी में भी उभर के आए थे, जिसके एंड कंचन एंड शिखा इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे हिंदी नहीं है या वहाँ की जो लोकल भाषा है उसका इम्पोर्टेंस क्या था, और फिर जनरली जो इकोसिस्टम की एंटिटीज़ है, जो पेरेंट्स से बात करना हो, आशा वर्कर्स होते हैं, उनसे बात करने में क्या क्या चैलेंजेस आते थे। बट यहाँ पे मैं एक सेकंड पॉज लेना चाहूँगी। एक तो है कि हम लोग ये स्टडी झारखंड में कर रहे हैं ना, तो ये स्टेट की जो कॉन्टेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें मैं गनौरी आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐड करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ हमने, क्योंकि झारखंड हम जानते हैं हेवी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, डेवलपमेंट एजेंडा बहुत सारा फोरग्राउंडेड है। तो इस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर एक स्टडी करना, और ख़ास करके रिसर्चर्स, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बहुत प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के बहुत सारे लोग आते हैं झारखंड से, बट रिसर्च, नॉलेज प्रोडक्शन, इसमें हमें कम ही लोग पर्टिकुलरली ये सब स्पेसेस में दिखते हैं। तो गनौरी, इस पे थोड़ा आप रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आई नो दैट आपने काफ़ी झारखंड में प्रोग्राम्स के साथ भी काम किए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा बताएं। एक सेकेंड रिचा, आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सभी साथियों को जोहार, झारखंडी जोहार।
जोहार का मतलब होता है प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन एक झारखंडी की तरफ से सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम गनौरी विश्वकर्मा है और मैं झारखंड से ही हूँ। एक ज़िला का नाम है पलामू, और पलामू के एक बहुत ऐसे गांव से आते हैं जहाँ पे आप मुझे, मेरा सरनेम जो विश्वकर्मा है, आप आदिवासी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आदिवासी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस रीजन में आता हूँ, पलामू डिवीज़न में, वहाँ पे विश्वकर्मा को ओबीसी में रख दिया गया है, जबकि जहाँ पे रिसर्च हुई है वहाँ पे अगर हम रहते तो हम आदिवासी होते। इस तरह के डायलेमा में हम हैं। तो हम झारखंड से हैं और 1932 का 18 का खतियान का बात होगा। जब भी आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो मेरे पास 1918 का खतियान भी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम ओरिजिनल झारखंडी हैं। चलते हैं मुद्दे की बात। शुरुआत हुई एक छोटे से गांव में पढ़ते हुए। बहुत अर्ली एज में पिताजी नहीं रहे, लेकिन पढ़ाई के प्रति जुनून था, पढ़ने के प्रति जुनून था। और दूसरा था कि झारखंड के स्कूलों में जो हो रहा है या आस पास में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा मेरा लगाव था। ऐसे करके मेरी जर्नी पहुंच गई अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। वहाँ जा कर के समझ में आया कि हमने पढ़ाई करी और बहुत अच्छा सेक्टर में करी है। फिर से हमें बेंगलोर से इस ऐसी दुनिया से फिर से झारखंड में जाना है, और मैंने झारखंड में ही अपने 8 साल के करियर में 2 साल मैंने बाहर, रेस्ट 6 इयर्स मैंने रिसर्च में और झारखंड में ही बिताए हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा है, और मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ इंडिपेंडेंट रिसर्चर के रूप में मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। और रिसेंटली मैं ब्रेक थ्रू के साथ, ये आज फाइनल डिसेमिनेशन इवेंट है, इसमें बोलना चाह रहा हूँ। झारखंड आप जानते होंगे, जैसी याद आपके जहन में आता है तो आप आदिवासी कल्चर तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, राइट। वहाँ पे अगर एक रिसर्चर की बात हो, या जब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो हम लोग को फील्ड रिसर्च के लिए भेजा जाता है। बहुत सारी रीडिंग्स मिलती है पढ़ने के लिए, और जब रीडिंग सर्च करेंगे, आर्टिकल सर्च करेंगे, तो लिखे रहेंगे झारखंड के बारे में, लेकिन लिखेंगे कौन, आप सभी लोग जानते हैं, बाहर के लोग रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ख़राब लिख रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ लिखने का और काम करने का मौका मिला, और इसके लिए ब्रेक थ्रू ने ऐसा प्रोसेस बनाया। मेरी रिक्रूटमेंट से पहले, ब्रेक थ्रू का एक लंबा जर्नी है। मेरे रिक्रूटमेंट से पहले, मतलब इस प्रोसेस में लाने से पहले, इन्होंने जितनी बार CV के लिए फ्लॉट किया नोटिफिकेशन, सारे रिसर्चर बाहर से आते थे। रिज्यूम जो आते थे करने के लिए कि हम काम करना चाहते हैं, बाहर से। लोकल मिलना बहुत मुश्किल था इनके लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा कहिए कि झारखंड के लोग हैं तो मतलब क्या ही रिसर्च, मतलब समझ रहे हैं, नॉलेज प्रोडक्शन, मतलब झारखंड के लोग क्या करेंगे, काइंड ऑफ ये है। और आप ये वैलिडेट करता है जब आप खोजिएगा, अभी भी आर्टिकल्स हो या बहुत सारे बर्निंग इशूज़ है उनके बारे में। मैं थोड़ा सा झारखंड का एक कॉन्टेक्स्ट था। दूसरा कि मैं जब ये रिसर्च कर रहा था, इसके मेथडोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा विशेष रूप से। इसमें यह है कि बहुत सारे रिसर्च होते हैं, तो क्या क्वेश्चनेयर हम लोग डेवलप करते हैं, पायलट करते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ, लेकिन इस रिसर्च का जो बनाया गया था तरीका, डेटा कलेक्शंस और फाइनल रिपोर्टिंग्स तक, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। कल मैं जब झारखंड से यहाँ तक आ रहा था, हो सकता है फ़्लाइट में ही हमारी बात नहीं हो गई क्योंकि फ़्लाइट मोड था, अदरवाइज लास्ट तक मेरे से वैलिडेट किया गया कि गनौरी ये सही है। रिपोर्ट में अगर हम PPT बना रहे हैं तो इस पॉइंट को लिखना चाहिए कि नहीं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो इस लेवल तक इन्होंने स्पेस दिया। ये टूल डिज़ाइनिंग से लेकर के हमारे इस रिसर्च के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी, झारखंड बेस्ड भी और बाहर से भी हमारे कंसल्टेंट भी रहे हैं, जिनके साथ मुझे काम करने को मौका मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट, डेटा कलेक्शन से पहले टूल डिज़ाइनिंग में उसके लिए वर्कशॉप करना। अगर टूल डिज़ाइनिंग हो गया, उसके बाद जिन किशोरियों के साथ हमें डेटा कलेक्शन करना है, उनके साथ इनिशियल की क्या हमारा जो क्वेश्चन डेवलप किए हैं मेन,
है ना, और उसके फॉलोअप्स क्वेश्चंस है वो वैलिडेट करते हैं कि नहीं, इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। दो की टिकट ही हमारे लगभग 5-6 साल से शायद ब्रेक थ्रू झारखंड में काम कर रहे हैं फिर भी। तो इस तरह का प्रोसेस रहा। उसके बाद इनिशियल स्टेज, फिर मिड लर्निंग लूप वर्कशॉप होना कि अगर हम इस स्टेज पे आ गए हैं, ये हमारे इनिशियल फाइंडिंग है, इसमें क्या और हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, क्या और किया जा सकता है। तो इस तरह से वैलिडेट करते हुए और फाइनल रिपोर्टिंग हुई है हमारे। अब हम बता रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज की बात हो रही थी। आप जैसे ही डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे तो आपको इन्यूमरेटर्स या फील्ड में जो हम कहते हैं एफआईज जिनको बोलते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, इन्यूमरेटर्स कहते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्यूमरेटर्स जो रखें वो लोकल एकदम उसी गांव से, आप समझिए नहीं हैं, जो अभी अपना अनुभव से साझा करेंगे। ताकि इसका कारण ये है कि अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ का लोकल जो चैलेंजेज है, मैं जब डाटा कलेक्शन के लिए जाता था तो गाड़ी बहुत दूर लग जाएगी, इसके बाद पैदल जाना है जंगल में अंदर जाइएगा तो बच्चियाँ कहाँ गई हैं, तो जंगल में लकड़ी लेने, महुआ चुनने। और 2 स्थिति हमारी ऐसी बनी थी कि 2 दिन से जा रहे थे और ईंट भट्ठे पे थे। अगर आप घर पे इंतज़ार करिएगा तो वो नहीं मिलेंगे, और उसी सेटअप में आपको उनसे बात करना है। और अगर जैसे ही आप बाहर का भाषा बोलेंगे तो फिर वो आपको कोटेड रिस्पॉन्सेज आने लगेंगे, जो रियल फील और टच है वो नहीं आएगा। अब जैसे ही आप बोलिएगा वहाँ का भाषा, का हाल हो, ठीक बड़े, है ना, इस तरफ जब जाइएगा तो समझेंगे कि अपना आदमी है, कुछ ना कुछ तो बात अपना ही करेगा। तो इस तरह से ब्रेक थ्रू ने हमें मौका दिया, और ये रिसर्च का जो फाइंडिंग्स है वो मेरे पूरे हार्ट, जो कहते हैं ना कि अगर इश्यूज़ को दिखाना है इस लेवल तक, आज दिल्ली में ला करके प्रेजेंट कर रहे हैं आप सभी के समक्ष। आप लोग अलग अलग पॉलिसीज़ लेवल पे, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होंगे, तो इस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़िए और इसके एक एक पॉइंट्स को वैलिडेट किया हुआ है और हमने देखा है, हमारी फीलिंग्स को लिखी गई है, हम एज ए झारखंडी कहना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ मौका देने के लिए। ठीक है, थैंक यू गनौरी। बट मैं इसलिए भी थोड़ा उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहूँगी, जो प्रोसेस बताया ना आपने, जो हम लोग के लिए बहुत अहम हिस्सा है, जिस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि शिखा और कंचन भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। एंड एज हम भी जानते हैं कि फेमिनिस्ट रिसर्च जो बोलते हैं, ऑफ्टन द आइडिया की जो प्रोसेस है दैट इज़ परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट than what you are eventually coming out with, what your outcome is or what your knowledge production is. तो हमने पूरी कोशिश की, of course there are limitations, there are avenues that can be improved, but हमने पूरी कोशिश की है कि terminologies दो हम बहुत सारे proposals में डालते हैं, ये terminologies को कितना और in depth practice किया जा सकता है। उसकी process में जैसे गनौरी ने जिक्र किया, हमने workshops रखे थे which were constantly from a methodology workshop experts के साथ, by experts I mean people who've been working इस एरिया में बहुत सालों से, एकेडमिक्स है, प्रैक्टिशनर्स है, एक्सेट्रा। वी ऑल्सो हैड अ मेथोडोलॉजी वर्कशॉप सेलेक्ट एडोलेसेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ भी, कि उनसे भी बात करने की, आपको लगता है कि ये मेथड अप्रोच लेने से आपको लगता है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो कंसर्न्स है या आपकी ख्वाबें हैं वो हम समझ पाएंगे नहीं, अच्छे से समझ पाएंगे कि नहीं। तो फ्रॉम देयर फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्शन से पहले भी किया, उसके बीच में प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के साथ भी हम वापस गए उनके पास, हमने पूछा कि आपको ये लग रहा है, ये गैप लग रहा है, ये साइलेंसेस है। और फिर हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड भी थे, और ये सब प्रोसेस चैलेंजिंग रहा है, सर इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, जो इन्यूमरेटर्स पूल, और जब सबसे ज़्यादा हम लोग सेक्टर में हम जानते हैं कि काफ़ी डेटा कलेक्शन के लिए वी गो टू एजेंसीज और देर आर सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वी नो, वी टैप इनटू, राइट। हमने इस बार कोशिश किया कि जहाँ से हैं, जिस एरिया पे हम, ऑब्वियसली नॉट द एग्जैक्ट एरिया बिकॉज फॉर ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, बट टू लार्जली उसी डोमेन से अगर लोग हम हायर करें और उनके साथ हम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करें, ताकि वही लोग सबसे बेस्ट प्लेस्ड है ये सब सवाल पूछने का।
तो इसमें थोड़ा और उसमें सबसे ज़्यादा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ा अगेन गनौरी ने रेफ़र किया था, जब हमने कोशिश भी की थी एन्यूमरेटर्स को ढूंढने में, सबसे ज़्यादा हमें सर्वे एक्सपीरियंस के लोग मिलते थे। क्वालिटेटिव स्टडी जो करते हैं ना, वो ज़्यादातर देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट होल्ड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो हम कोशिश किए कि क्वालिटेटिव एन्यूमरेटर्स को ट्रेन करने के लिए, और इसमें हमने, और दूसरी चीज़ हमारी टूल, ऑब्वियसली हम जैसे TKT के एसोसिएटेड या जेंडर इक्विटी प्रोग्राम के एसोसिएटेड बहुत सारे सवाल पूछे थे। उसके अलावा हमने बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ पे भी इन एडोलेसेंस से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें वी फर्मली बिलीव, बिकॉज द इकोसिस्टम मॉडल दैट वी हैव, वेयर वी लुक एट द लार्जर स्पेसेस दैट दीज एडोलेसेंट्स इनहैबिट, हमें लगता है कि बाकी जो इश्यूज़ है लाइक लैंड की, माइग्रेशन की, कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटीज़ की, ये सब की अंडरस्टैंडिंग और इसकी मैनिफेस्टेशन उनकी ज़िंदगी में कैसा है। तो शिखा और कंचन, शायद शिखा आपसे आप थोड़ा एन्यूमरेटर ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा आप बताएं, और मतलब जनरली आप लोगों को कैसे एक्सपीरियंस रहा, और डेटा कलेक्शन में भी वो कैसे बेनिफिट किया आप लोगों को या नहीं किया, जैसे भी हो। So good afternoon all of you. Johar again, so that you can feel the essence of Jharkhand again, like Johar. I'm from Jharkhand, and I have worked with Breakthrough as an enumerator. So I would like to share my experience during the research project, the training, the issues. So firstly, I mean, we were trained as in we were given that we were made to understand the. ओके, सो हमको ट्रेनिंग में ये बताया गया ना कि आपको एक फोकस, मतलब कि क्यों हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न है। पहले एज एन एन्यूमरेटर हम समझेंगे ना इस चीज़ को, तभी तो हम कम्युनिटी में जाएंगे और लोगों तक जो हम फील कर रहे हैं उनको महसूस करा पाएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेनिंग जैसे शुरू हुआ, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे मतलब हमको बताया गया, सबसे पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराया गया, व्हाट इज़ एजेंसी, व्हाट इज़ जेंडर, कि जेंडर क्या है, कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एज ए नॉर्मल पर्सन हम नहीं समझ पाते कि जेंडर बेसिकली है क्या, इन डेप्थ व्हाट इज़ जेंडर। वी थिंक दैट ठीक है, मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, बट व्हाट इज़ बेसिकली जेंडर, मतलब किस तरह से उसको सोसाइटी देख रहा है और किस तरह से हम देख रहे हैं जेंडर को। तो इन डेप्थ हमारी ट्रेनिंग हुई कि व्हाट इज़ जेंडर, आप क्या समझते हैं पहले जेंडर से। तो ऐसे हमें समझाया गया। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई बहुत सारी पॉलिसीज़ को लेके, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, पॉक्सो है, पॉश है, CSP है। हमें उनके लिए भी ट्रेन किया गया कि आपको बच्चों से डील कैसे करना है, क्योंकि वो एडोलेसेंट हैं तो उनका एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड है। अगर आप पूछने जाओ, अगर आप उनसे अगर आप सीधे सीधे मुझे बोल दिया जाए कि आप जाके इंटरव्यू करो, तो हमें ऐसे सीधे सीधे रिस्पांस तो देंगे नहीं। सबसे पहले तो डर जाएंगे वो कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर उनको थोड़ा आइडिया दो कि आप क्या पूछने आए हो, तो वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देंगे आपको, ताकि आप मतलब हर कोई चाहता है ना कि जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अच्छे लगे, हम वेल साउंडेड हों, ठीक है, ऐसा दिखे जैसे कि हम सब आता है, कुछ नहीं है। मतलब कौन बुराई बताना चाहता है। आप शुरू में जाओगे किसी की इंटरव्यू करने के लिए तो कोई अपने बारे में बुरा तो बोलेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बुरा हो रहा हो, मतलब इन द बैकग्राउंड कुछ भी हो, पर वो चाहेंगे कि आप अच्छा ही सुनो। तो हमें उस तरीके से ट्रेन किया गया कि आपको क्वालिटेटिवली उनसे आंसर मिलेगा कैसे। एंड द बेस्ट मतलब एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉलो अप क्वेश्चंस, जो कि आपके उस पे नहीं है, मतलब आपके टूल में नहीं है वो क्वेश्चंस, आपको उनसे ही निकलवाने हैं और उनके जवाब से ही फिर से सवाल बनाना है, ताकि आप और इन डेप्थ उनके बारे में जानो। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे सवाल पूछोगे तो वो सीधे जवाब देंगे, तो उनके जवाब में से भी आपको कैसे सवाल बनाना है और फिर उनसे जवाब कैसे लेना है, ये हमारे ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा था, एक अहम टूल था। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद एक हमारे ऐसे भी ट्रेनिंग हुआ कि आपको असेंट और कंसेंट में पहले आप फ़र्क जानो। अगर आप जानते भी हो तो भी आप जानो कि व्हाट इज़ असेंट एंड व्हाट इज़ कंसेंट। कंसेंट बेसिकली पेरेंट्स से, एंड असेंट जो बिलो 18 है। तो पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग को मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग को पहले और फ्रेश किया गया, रिफ़्रेश किया गया। उसके बाद जब हम कम्युनिटी में जाते
तो हमें सबसे पहले ये बताया गया कि आप बच्चों के लिए मतलब एडोलसेंस के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट कैसे तैयार करोगे। आप जाओगे तो कोई जवाब नहीं देगा ना। आप एक सेफ़ एनवायरनमेंट कैसे उनके लिए बनाओगे कि आप उनसे पहले लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करो। मतलब टफ़ है। अगर उनको आप देखो ना तो सबसे पहले तो उनकी ये क्या है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब उन्हें लोकल लैंग्वेज में, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में भी बोल रही थी ना उनको, तो क्या हो रहा था कि वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे लोकल में भी, क्योंकि पहले आपने जाके हिंदी बोला ना, पहले आप जाके एज एन इंटरव्यू जाके बोल रहे हो, तो बाद में क्या है कि वो जान रहे हैं कि ये तो इंटरव्यू करने आए हैं ना, तो लोकल में भी आप बोल रहे हो तो फिर वो हेजिटेट कर रहे हैं। तो फिर आप उनको थोड़ा रूम दो, उनको स्पेस दो, थोड़ा कंफर्टेबल कराओ, लाइक्स के बारे में पूछो, डिसलाइक्स के बारे में पूछो, एरिया के बारे में पूछो, स्कूल के बारे में पूछो, तब जाके वो कुछ जवाब दे पाते। तो ये रही हमारी ट्रेनिंग। ऐसे हमें ट्रेन किया गया, बहुत फ़िल्टर्स के थ्रू हमें होके जाना पड़ा, तब जाके कुछ इन्यूमरेटर्स हमारे साथ जुड़े जो ट्रेनिंग में सक्सेसफुल रहे एंड देन इन्फॉर्मेशन निकालने में भी सक्सेसफुल रहे। तो ये 3 फेजेस में हुआ। जैसे कि पहला आपका IDI मतलब आपका इन डेप्थ मतलब बच्चों के मतलब एडोलसेंस के साथ। उसके बाद KII की इन्फॉर्मेंट जो जैसे टीचर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए। फिर FGD फोकस डिस्कशन, जैसे एक ग्रुप को लेके, पूरा एक ग्रुप को लेके। तो इन तीनों की जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत अलग अलग सी रही है कि आपको एडोलसेंट के साथ कैसे डील करना है, पेरेंट्स के साथ, बिकॉज पेरेंट्स भी बहुत एक्सेप्टेंस वो नहीं शो करेंगे। पहले तो हमारे झारखंड में प्रॉब्लम ये है ना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है। तो वो चाहते हैं कि इमीडिएट कुछ बेनिफिट मिले, इमीडिएट बेसिकली मॉनेटरी बेनिफिट, कि अगर आप हमसे कुछ ले रहे हैं, हमारा टाइम ले रहे हैं कि यार आप टाइम ले रहे हो, अच्छा इंटरव्यू करने के लिए आए हो, तो क्या मिलेगा, आप इंटरव्यू करने आओ। उनको लगता है कि धान काटने से ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है। हम धान काट रहे हैं, अगर धान मतलब हाँ राइस की जो कल्टीवेशन होती है और हार्वेस्टिंग, तो वो अगर आप धान काट रहे हैं तो तुरंत चावल मिलेंगे। इनका मेरे से पूछना और चेंज लाना, उससे क्या मिलने वाला है, इस चेंज से क्या मिलेगा। सो दे डोंट वांट टू चेंज बिकॉज दे नो कि अल्टीमेटली देयर इज़ नो मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ना। तो उनका दिमाग सबसे पहले पैसे के लिए ही जाता है कि खाना होगा तो सब कुछ होगा। एंड वी ऑल्सो फील द सेम। पेट में खाना नहीं तो दिमाग भी नहीं काम करता है, चाहे हम कितने भी फाइनेंशियली स्टेबल हो। देन ये हमारा पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस हो गया। नाउ कम्स द इश्यूज़ दैट वी आर इंटरेस्टेड एज नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज। एक सेकेंड, इश्यूज़ पे हम थोड़ा बाद आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसको लेके ये प्रोसेस के बारे में थोड़ा कंचन का भी थॉट सुनेंगे एंड देन फिर विल मूव इनटू द इश्यूज़ पे। थैंक यू। कंचन, आपका भी मुझे पता है कि एन्यूमरेटर जैसे हम लोग टूल ट्रेनिंग में जैसे कंचन को पहुंचने में सबसे ज़्यादा मुश्किल, 2 घंटे दूर से आते थे वो। उनकी खुद की जो मोबिलिटी, जो सबसे बड़ी फाइंडिंग है, हम लोग सब जानते हैं कि मोबिलिटी रिमेन्स की सबसे बड़ी इशू होती है। कंचन का खुद की लिव्ड रियलिटी भी वही है। थोड़ा आप उसके बारे में और थोड़ा और आप हम लोग जैसे शिखा ने बताया ये सब कंसेंट और कंप्लायंस ये सब, बट ऑल्सो जैसा हमने एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस भी बनाया था जिस पे हम आप लोगों की भी विचार जानना चाहते हैं कि जैसे हम ये सब मुद्दे के बारे में भी इस टूल में पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे सही हैं, जैसे कि ज़मीन की हो गई, बेरोज़गारी की हो गई, है ना, फिनेंशियल डिफ़िकल्टी की हो गई है, माइग्रेशन बहुत हेवी है स्टेट में, तो उसके बारे में भी थोड़ी आप, बिकॉज आप भी उसी दुनिया से आते हो, तो आप थोड़ा उसके बारे में। थैंक यू। आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। मेरा नाम कंचन है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। हजारीबाग ज़िले से एक सुदूरवर्ती गांव बेड़म की रहने वाली हूँ हम। और वहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं है, यानी सभी साधनों से वंचित वाला गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। हम अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा भी एक तरह से बाल विवाह ही हुआ था, यानी कि 16 की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 10th का जब मैं एग्ज़ाम लिखी उसके बाद मेरी शादी हो गई। और जब मैं 10th का एग्ज़ाम लिख रही थी तो पहली बार हमने हजारीबाग सिटी यानी शहर आए थे, गांव से, अपना गांव से पहली बार हम आए थे। इससे पहले कभी हमने देखा ही नहीं था शहर क्या होता है। तो जब हम शहर आए तो वहाँ और भी जो लड़कियां लोग पढ़ती थी कॉलेज में जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था,
तो उनको देख के मेरा इच्छा जागृत हुई कि हम भी काश ऐसा पढ़ पाते हैं। तो हम लोग 4 बहन थे और एक ही मेरा भाई था। 4 बहन होने के कारण, दहेज प्रथा होने के कारण मेरी विवाह बाल विवाह कर दिया गया, क्योंकि एक का करेंगे उसके बाद पीछे करेंगे, उसके बाद पीछे करेंगे, क्योंकि एक ही तो नहीं ना है कि हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे उसके बाद इसका विवाह करेंगे, वैसा तो था नहीं। और आर्थिक स्थिति भी मेरी सही नहीं थी मेरे परिवार की, जिसके कारण मेरा बाल विवाह हुआ। और बाल विवाह होने के बाद मेरा मतलब 16 की उम्र में शादी हुआ। उसके बाद 23 तक होते होते मेरे 5 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बच्चे मेरे नहीं हैं कुपोषण के चलते, यानी मैं पूरी तरह से सक्षम नहीं थी, जिसके कारण मेरे बच्चे मतलब नहीं सुरक्षित यानी जो होता है वो नहीं होता था, जिसके कारण मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से अभी 3 हैं और 2 नहीं हैं उतना कम उम्र में। लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इसमें मेरे जो हस्बैंड है वो मेरा बहुत साथ दिए। वो हर जगह मतलब पढ़ने के लिए रोक नहीं है, लेकिन साधन कुछ भी नहीं था। जब भी मैं पढ़ने के लिए या फिर कॉलेज में जब मैं एडमिशन ली तो मैं सुबह 7 बजे निकलती थी और वही 8 बजे पहुंचती थी। सुबह 7 बजे कोई भी यातायात का साधन नहीं है, आने में भी बहुत दिक्कत, कभी कभी 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे पैदल चलना पड़ता था, या तो फिर किसी को घर से फ़ोन करके बुलाना पड़ता था, उसके बाद हमको जाना पड़ता था अपने घर तक। और ऐसा गांव समाज में ऐसा होता है कि अब शादी हो गया तो क्या करेगी पढ़ के, अब तो ऐसा अपने घर के मान मर्यादा में रहो, बाहर निकलना नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि उसकी बहू ऐसी है, मतलब घर के इज्जत मान मर्यादा में ना रहकर वो बाहर जाती है। तो घर वाले तो मेरे हस्बैंड तो समझ रहे हैं, लेकिन बगल वाले या फिर समाज के लोग नहीं समझ पाते थे। वैसे वो बोलते थे पता नहीं ये कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, पढ़ेगी भी तो क्या करेगी, चूल्हा चौकी तो करना ही है, उससे क्या फ़ायदा है। लेकिन हमने फिर भी हार नहीं माना, हमने तो हिम्मत रखा कि नहीं हमको तो पढ़ना ही है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन फिर भी हम बच्चे के साथ यानी बच्चे को भी लेकर जाते थे और कुछ दूरी पैदल चलकर भी जाते थे। मतलब इतना कठिनाई करने के बाद भी हम पोस्ट ग्रेजुएट 2022 में कंप्लीट किए और अभी हम आईसेक्ट यूनिवर्सिटी से MSW कर रहे हैं। तो फिर जब मेरी 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम मतलब कभी कभी घर से भी टॉर्चर होता था कि तुम पढ़ तो रही है पर क्या इससे इनकम होता है, सिर्फ पढ़ाई में। मेरी सास कहती थी कि जब से आई है तब से तुम्हारा पढ़ाई में, तुम्हारा इलाज में, तुम्हारे बच्चे में ऐसे ही खर्चे हो रहे हैं, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कभी कभी टॉर्चर किया जाता था कि तो फिर हमने सोचा कहीं ना कहीं कुछ तो करना है ना, हमको तो सशक्त बनना है। जब इतना मेहनत किए हैं तो सशक्त बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी को कुछ जवाब दे पाएंगे। तो फिर हम धीरे धीरे मतलब एक संस्था के बारे में पता किए, प्रदान संस्था है, उसमें फिर हम जुड़े, फिर उसमें हम काम किए। उससे जो मेरा बेनिफिट हुआ उससे हम अपने बच्चे को अभी मिशन में पढ़ा रहे हैं। मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल में हम पढ़ाने का ये मतलब शौक़ रखे हैं कि हम तो किसी तरह से झेल लिए पर मेरे बच्चे ऐसे ना हो। तो अभी हम बच्चे लोग को मिशन स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपना घर का जो खर्चा होता है हम खुद ही करते हैं। उसके बाद जो मेरा पर्सनल खर्चा है वो हम किसी से 2 रुपया मांगते नहीं हैं, हम खुद अपने से ही मैनेज करते हैं धीरे धीरे। और मेरा मिट्टी का घर था जो पहले, लेकिन फिलहाल अभी हम बनाना चालू किए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम अपना भी लगाए हैं, मतलब बनाने के लिए मदद की है। तो उन लोगों का भी मन बढ़ा कि नहीं अब कुछ करने लगी, कुछ पैसा आने लगा या फिर आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगा। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन प्रदान में करने के बाद जब उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया उसके बाद हम मानव विकास में काम किए 2 साल। उसके बाद फिर हम 2024 में ब्रेक थ्रू संस्था के बारे में जाने और ब्रेक थ्रू संस्था के बारे में जब हमको पता चला और जाने तो हम ये काम के दौरान हम सर्वे किए थे, पर ब्रेक थ्रू में आने के बाद जो सर्वे जो करना था, जो गहराई तक जाना था, वो पहले हम में नहीं था। सर्वे तो किए थे लेकिन उतना गहराई तक नहीं जा पाते थे, मतलब बस ऊपर से मतलब डायरेक्टली कि ये है वो है ऐसे करके सर्वे होता था। लेकिन ब्रेक थ्रू में आने के बाद हम उसके अंदर की गहराई तक यानी कैसे जाना है उस बच्ची को या फिर किशोर किशोरियों के साथ उनके अंदर के अनुभव को हम कैसे जान सकते हैं,
उसका ट्रेनिंग लिए हम। ट्रेनिंग के दौरान ये पॉस का ट्रेनिंग हुआ और पॉक्सो एक्ट का ट्रेनिंग हुआ, CSP का ट्रेनिंग हुआ, जिसमें हम बच्चियों को सक्षम कैसे कर सकते हैं कि वो मेरे साथ अच्छे से बोल सके। मतलब उनमें हम अपनापन जगाते हैं कि उनको लगे ना कि ये हमसे अलग है। ऐसे तो हम वहीं के हैं तो उससे कोई दिक्कत हमको ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि वो मेरे बात को समझ सके और बता सके, उनकी गहराई तक हम जा सके, उनके अनुभव को हम जान सके। कुछ कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आते थे कि उनके जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो बोलते थे पता नहीं क्या पूछेंगे, ये क्या काम है। जैसे बोलते थे एक सेफ जगह चाहिए इनके लिए, इनका इंट्रोडक्शन लेने के लिए, लेकिन कभी कभी वो लोग घबराते थे कि पता नहीं क्या उनके साथ करेंगे, ये क्या कैसी बात पूछेंगे। ऐसे भी कभी कभी होता था, मतलब सहमति नहीं भी देना चाहते थे, लेकिन उनके साथ तालमेल बनाने के बाद, अपनापन लाने के बाद वो भी सहमति दे देते थे और उनके साथ हम इंटरव्यू करते थे। मतलब बेसिकली वो ना जाना नहीं चाहते थे, जहाँ हम इंटरव्यू करते थे ना वो आसपास खड़े हो जाते थे और बोलते थे आप पूछिए ना, हमारा ही तो बच्चा है, हमारे ही तो बच्चे हैं, आप पूछिए ना, हम लोग क्या दिक्कत है, मतलब आप ठीक है कुछ भी आप पूछ सकते हैं पर हमको रहने दीजिए यहाँ पे। और गांव के लोग भी अगर कुछ उनके भैया हैं या बड़े, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि ब्रदरहुड सिस्टरहुड ज़्यादा होता है गांव में, कि मेरी बगल की है तो ये मेरी ही, मतलब कि इसको सेफगार्ड करना, इसको गाइड करना, इसको रास्ता दिखाना, भले ही कभी वो गलत भी गाइड करते हैं लेकिन हम बड़े हैं तो ये सही है। मतलब सोसाइटल नॉर्म्स जैसे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी में, लेकिन आइडियल गर्ल तो उनको लगता है कि लड़की से पूछ रहे हैं ये लोग तो यहाँ रहने में क्या है, हम सुन रहे हैं ना बस, आप थोड़ी ऐसा कुछ ऊटपटांग सवाल पूछिएगा, हम सुन रहे हैं बस। तो वो इट वॉज ऑल्सो चैलेंज हमारे लिए कि उनको वहाँ से हटाना। कई बार तो CDs का हेल्प लेना पड़ता था, कई बार मैम को बुलाना पड़ता था कि आप आ जाओ, ये हटना नहीं चाह रहे हैं यहाँ से। मतलब इनके सामने कैसे पूछे, बच्चे भी तो क्या है कि पेरेंट्स के सामने, एक तो सबसे पहले वो खुल के पेरेंट्स से बात करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको फिर पेरेंट्स का हेट इज़ द वर्स्ट थिंग, कि आपको आपके पेरेंट्स हेट कर रहे हैं क्योंकि आप वो जो चाह रहे हैं आप वैसे नहीं बन रहे हो, या वैसा आप सोच नहीं रहे हो, आप एक अलग तरीके से सोच रहे हो ना कि यहाँ जाना है, पापा नहीं चाहते हैं, मम्मी नहीं चाहती है, तो वो बोलेंगे ही नहीं। अगर मम्मी पापा उनके रहेंगे वो बोलेंगे ही नहीं कि आपको मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ, क्यों अपने मम्मी पापा के बारे में ख़राब बोलेंगे, वो भी मम्मी पापा के सामने नहीं बोलेंगे ना। तो ये सर, हाँ हमारे क्षेत्र में बहुत से बच्चियाँ मतलब ऐसी है जिसके साथ हमको इंट्रोडक्शन लेना रहता था, वो मिलती ही नहीं थी, क्योंकि वो सुबह 8 बजे से मजदूरी करने के लिए, आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है कि सुबह 8 बजे से वो शाम 7 बजे ही घर आती थी, जिसके कारण भी उनसे मतलब इंटरव्यू लेने में हमको बहुत परेशानी हुई, मतलब मिल नहीं पाते थे। कभी खेती का समय है तो धान कटाई है, और कभी रोपने का समय है, मतलब खेती तो होती है ना, कुछ वो लोग करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो ज़्यादातर ये प्रवासी मजदूर के लिए, मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर शहर के लिए भी आती है लड़कियां, जो किशोरियां हैं वो लोग भी, और किसी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से। और जिनके पास खेती नहीं है ना, मतलब जिनके खेत नहीं है, ज़्यादा गरीब है, जिनके पास बड़े बड़े खेत नहीं है, वो दूसरे के खेत में काम करने जाते हैं। मतलब ड्यूरिंग द सीज़न, जब सीज़न है हार्वेस्टिंग का, तो वो दूसरे के खेत में जा रहे हैं काम करने, ईटा का काम करने जा रहे हैं, ईटा भट्टी में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो नहीं मिलते थे बच्चे, मतलब एडोलेसेंस हमें ज़्यादातर 15 to 18 ईयर्स की लड़कियां नहीं मिलती थी। तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम इशू है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ही वजह से। तो शिखा, बिकॉज आप दोनों भी थोड़े बहुत, एंड खास करके कंचन आपकी जो नैरेटिव से बहुत सारे, जो हमारी स्टडी की भी जो फाइंडिंग्स है बहुत सारे उभर के आए हैं, मगर बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम 2 चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। आप पहले बोलिएगा, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि गनौरी और अविनाश फिर उसके साथ कंक्लूड करें। एक तो है कि स्कूल की सेफ्टी का वो जो पॉइंट है, क्योंकि वो बाउंड्री वॉल है, वो एक बात है, बट मे बी सोशल इश्यूज़ को लेके, खास करके डाउरी को लेके या सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में, क्योंकि आप लोग अगेन ये आप लोगों की एक लिव्ड रियलिटी भी रहा है, तो उसके बारे में, और थोड़ा पेरेंट्स की जो कंट्रोल है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि, और जबकि खास ये कुछ भी नया नहीं है, हम लोग सब
जानते हैं कि ये दीज आर बहुत डिफ़िकल्ट स्पेसेस टू सी एनी मूवमेंट इन, एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस इन, राइट? तो उसमें थोड़ा आप रिफ्लेक्ट कर लीजिएगा डाउरी करके, क्योंकि डाउरी से भी थोड़ा वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई दहेज हैं। प्रथा ना। हाँ जी, दहेज प्रथा, उनकी ज़रूरत को भी वो लोग समझते हैं। हाँ जी। हमारे झारखंड में ना दहेज प्रथा इतना हावी हो गई है कि इसके कारण भ्रूण हत्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल गया है भ्रूण हत्या सिर्फ दहेज के कारण। क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर बेटी है, गर्भ में बेटी है, तो फिर जन्म देने से उसके लिए हमको दहेज जमा करना पड़ेगा, उसके लिए फिर कहाँ देंगे, और इतना महंगाई में तो बहुत मुश्किल है। दहेज प्रथा के कारण कितनी बेटियों को तो ससुराल में भी जिंदा जला दिया जाता है, कितने को मार दिया जाता है, कितने तो अपने आप को आत्महत्या कर लेती है, सिर्फ क्या दहेज प्रथा के कारण। दहेज प्रथा हमारे लिए मतलब हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा इसका मतलब प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो कंचन, जब हमने जो एडोलेसेंस से बात की ना, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या था उस इशू को लेके? कि उनको लगता था कि एक फाइंडिंग ये भी निकल के आए थे कि वो जानते हैं कि इसका बहुत नुकसान होता है, मगर ये लोग एक तरीके से ये भी सोचते हैं कि हम इसका ये ज़रूरी भी है, क्योंकि शादी इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका शादी तो होगा ही, तो आप बिना उसका देखिए दहेज के चलती ना बेटियां लड़कियां भी समझती है कि हमको दहेज मिलेगा ना तो हम सेफ्टी रहेंगे, यानी हमारे पास कोई परेशानी नहीं होगी, ससुराल की तरफ से टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ऐसा भी हो गया। तो खुद से भी लड़की लोग कहने लगी है कि नहीं हमें दहेज चाहिए, और दहेज में ये मतलब ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, ऐसे भी मतलब लड़कियों लोग का अब मानना हो गया है कि हम दहेज लेके जाएंगे तो अपने आप में वो लोग सोचते हैं कि हम सेफ्टी रहेंगे, मेरे मतलब कोई परेशानियां नहीं होगी। और इसमें हमने ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या लड़कियों को अपनी मम्मी पापा की ज़मीन पे हक होना चाहिए, तो जिससे भी ये सारे एक मतलब जिससे भी ये सवाल कर रहे थे, सारी लड़कियां यही बोल रही थी कि नहीं, ज़मीन पे बेटियों का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ बेटों का अधिकार होता है। यही कारण है झारखंड में जो कि 3 बेटी भी हो गई, 4 बेटी भी हो गई, फिर भी एक बेटा होना चाहिए। 3 बेटी भी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेटा होना ही चाहिए, जिसके कारण कितने भ्रूण हत्या होने के बाद भी एक बेटा को जन्म देते हैं कि वो मेरा सहारा बनेगा। बेटी कुछ नहीं करेगी, बेटी को यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद उसके पीछे पैसा खर्चा करेंगे, वो तो अपना ससुराल चली जाएगी, वो तो पराये धन है, वो तो मेरे घर की है नहीं। कितनी बेटियों का जो नौकरी भी में कुछ पैसा देने पड़ते हैं या फिर कुछ करना पड़ते हैं तो माँ बाप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसको तो देंगे हम, लेकिन जब वो कमाएगी तो यहाँ नहीं ना देगी, अपने ससुराल में करेगी, वो पराई धन है, मेरे घर की नहीं है। अब बेटी का तो बिल्कुल भी ज़मीन पे उनका अधिकार नहीं होता है। अगर किसी घर में सिर्फ बेटी ही है तो उनके चाचा के जो बेटे हैं वो उनका अधिकार, उनका ज़मीन पे वो अधिकार जमा सकते हैं, पर उनकी बेटी नहीं, ऐसा है। बेटियों का मतलब ज़मीन पे बिल्कुल भी मतलब पिता के संपत्ति पे अधिकार ही नहीं है, बस। और वो एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छा, इसी के कारण लोग शिक्षा से भी वंचित रखते हैं बेटियों को, इसलिए कि जो हम पढ़ाने में जो खर्चा करेंगे इतना महंगाई में, वही पैसा हम शुरू से इसको रखेंगे तो वो दहेज में काम आ जाएगा, ऐसा उन लोग का मानना है। हमने टीचर से और बहुत सारे लोगों से भी देखा था कि मतलब गांव वाले थोड़ा बहुत शादी में भी मदद कर सकते, बट शायद पढ़ाई के लिए उतना हाँ, शादी के लिए तो मदद कर देंगे। जैसे समाज में किसी के यहाँ बहुत गरीबी है फिर भी इसको दहेज देना पड़ रहा है, तो समाज में एक प्रतिनिधि के द्वारा या फिर किसी पंचायती किया जाता है, उसमें से यानी जो चंदा लोग बोलते हैं कि सबके यहाँ से देना है और उसके बाद उनका विवाह करना है, वो मान मर्यादा के साथ, वो ठीक है। लेकिन पढ़ाई के लिए कोई ऐसा बोले कि हम पैसा जमा करके देंगे और शिक्षा करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि ये होता है गांव समाज में कि नहीं, बेटी पढ़ रही है, हजारीबाग जा रही है, तो उन लोगों का मानना है पता नहीं क्या वहाँ कर रही है, नहीं जाना, उस पर रोक लगाएगी, अगल बगल बोलेगी उसकी फलाना की बेटी ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। यहाँ चर्चा होगा लेकिन कोई आपका सहमति मतलब कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाएगा कि आप आगे जाइए, पढ़िए या फिर कीजिए। लेकिन हम अपने घर में जब से पढ़े हैं तो मेरे से पीछे जो मेरे घर में जो है वो लोग धीरे धीरे अब निकलना चालू कर दिए हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। वो एक रोल मॉडल की भी जो एक चीज़ होती है ना, अगर आप देखोगे आसपास तो एक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहती थी कि एक चीज़ है जो कि बहुत सारे एडोलेसेंस ये पहचान पा रहे ये हो रहा है, और जबकि जब हमने माँ बाप लोगों से बात की FGDs में जो ग्रुप डिस्कशन किए थे, उसमें बहुत सारे माँ बाप ने बोला कि नहीं, हमारे लिए तो बेटे और बेटी एक समान है, कोई फर्क नहीं है ना। देखिए, बोलते तो ग्रुप जब डिस्कशन होता है ना तो बहुत से ऐसा जगह है ना, पेरेंट्स बोलते तो है कि हमारे लिए समान है बेटा बेटी, पर ऐसा करते नहीं है। जब हम लोग ये ट्रेनिंग किए मतलब
बच्चियों के साथ जब हम लोग उनका इंटरव्यू लिए, उनकी गहराई तब गए, तब तो पता चलता है कि नहीं, वो कहने को तो कह देते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, हम तो समान रूप से देखते हैं, पर ऐसा नहीं देखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बेटों को ऐसे नहीं, बेटों को प्राइवेट भेजना है, अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छा फैसिलिटी देते हैं। अगर यदि बेटे रात के 12 बजे भी घर आ रहे हैं तो उसको कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वो बेटा है। और वही लड़कियां अगर यदि हमारे झारखंड में 6 से 7 भी बज गया ना तो उसके ऊपर उंगली उठ जाती है। ऐसा बोला जाता है हमारे समाज में कि लड़कियां सफ़ेद चादर होती है, उसमें एक छिटका पड़ जाए तो वो दूर से ही दिखता है, और लड़के ऐसा नहीं, लड़के ब्लैक चादर है, उसमें कुछ भी हो जाए तो दूर से दिखेगा नहीं ऐसे। और जो समाज में एक बार जो लड़की गिर जाती है ना, उसको उठना बहुत मुश्किल है, वो मतलब मानसिक तनाव में आ जाती है, फिर वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती है और ना बढ़ती है। ऐसा हम लोग का समाज का अभी भी ढांचा, जो समाज का जो बन गया है, वो अभी भी बहुत बिल्कुल एक तरह से खतरनाक है। और आप पेरेंट्स को जितना भी अवेयर कर लो ना एजुकेशन के लिए, उनके लिए एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो इमीडिएट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देगा। उनको पता है कि बहुत लंबे समय तक 8th में पहले तो एजुकेशन गाँव में क्या है कि 8 तक ही एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है नहीं, और अगर है भी 10 तक है भी तो लोग अनअवेयर हैं कि एजुकेशन मतलब क्यों कराना है, क्यों पढ़ाना है, पढ़ा के क्या करेंगे। 10th करो, फिर 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, बहुत लंबा प्रोसेस है। तब तक तो ये इसको पता नहीं लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और डाउरी, उनको ऐसा लगता है कि डाउरी एक सोशल लेवरेज है, प्राइड का भी एक चीज़ है कि मेरी बेटी इतना पैसा लेके जा रही है, उसके लिए एक प्राइड का भी मोमेंट है ससुराल में कि कितने बड़े घर से आई है, कितना सामान लेके आई है, ये इसको अलग से रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत बड़े घर से आई है। अगर लड़का ऐसा है ना कि थोड़ा लड़के के पास कम पैसा है एज इन कम्पेयर टू द गर्ल, लड़की के पास ज़्यादा है, तो उसको लगेगा कि इतना कम, मतलब हम 20,000 ही महीने का कमा रहे हैं या 15,000 कमा रहे हैं, और देखो इसके पापा क्या क्या दिए हैं। तो उसको भी अच्छा लगता है, लड़की को भी, कि हम कितना कुछ लेके आए हैं। मतलब वो खुद जाके बोलेगी कि मेरे पापा तो फ्रिज दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं। एंड अगर वो एजुकेटेड है तब भी, इफ़ शी इज़ अ ग्रेजुएट देन ऑल्सो, तो इतना ज़्यादा रिजिडिटी है अभी भी। अगर मतलब एजुकेशन का मतलब सिर्फ उनके लिए वो बुकिश नॉलेज है कि एग्ज़ाम पास हो गया, BA का एग्ज़ाम हो गया, MA का एग्ज़ाम हो गया, कोई ऐसे मतलब एजुकेशन से आप अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ थॉट ये नहीं है उनमें। मतलब मॉडर्न है कि जैसे हम सभी यहाँ बैठे ना, बहुत लोगों ने कुर्ती पहना है, सूट पहना है, तो उनके लिए है कि जीन्स पहनो तो यू आर मॉडर्न। मतलब जीन्स दे कंसिडर नॉट वेस्टर्न, दे कंसिडर मॉडर्न। शिखा, सॉरी टाइम का थोड़ा है, Okay. ठीक है, तो एक फाइनल 2 पॉइंट्स, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना है, कंसर्न बोलिए। ये बेटियों का जब विवाह होता है ना, तो उसके लिए उनके पिता यानी उनके पेरेंट्स 2 कट्ठा ज़मीन भी बेच देंगे तो चलेगा, लेकिन बेटियों को 2 कट्ठा का ज़मीन का अधिकार नहीं देंगे। ऐसा होता है, मतलब वो ज़मीन बेच के उससे पैसा लेकर उनका दहेज दे दिए, पर वही सोचते हैं अगर वो 2 कट्ठा जो हम बेच रहे हैं उसका जो उसी को दें तो उसका एक अधिकार हो जाता है, उस पर उनका एक पूंजी बन जाता है। जब उनका कोई सहारा नहीं रहता तो कम से कम वो तो ज़मीन तो सहारा ना रहता ना। तो झारखंड की बेटियां ना घर की होती है ना ससुराल की होती है, कहीं का नहीं होती है, कहीं पे उनका ये हक नहीं होता है। ससुराल में है तो पति का संपत्ति है, घर में है तो भाई का संपत्ति है, पिताजी का संपत्ति है, तो बेटी का हक ही कहाँ है? कहीं नहीं है हम लोग का हक। हम लोग दोनों घर से बेघर है, मतलब हम लोग का कहीं एक तरह से जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं का नहीं ना, सही बात ना, यहाँ ना अपना मायका का है ना ही ससुराल का है। वहाँ भी जाइए तो पति पे निर्भर रहिए, वो कब 2 रुपये देंगे, कब क्या कहेंगे, उनके अनुसार चलिए। और यहाँ जब तक है तो माँ बाप के मान मर्यादा में रहिए, उसमें भी थोड़ा सा अगर यदि कुछ हो जाए तो फिर उनका इज्जत का भी तो ख्याल करना है ना, समाज है ना, गाँव है ना। तो बेटी के लिए बहुत टफ है। मतलब एक कॉमन सेइंग है ना, मेरा जो गांव है वहाँ स्कूल 5 तक ही है, उसके बाद वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पे एक स्कूल है, मतलब हाई स्कूल है, 10 तक है। कितनी लड़कियाँ ऐसे हैं जो 5 की उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स नहीं जाने देते हैं, क्योंकि सही नहीं है, एरिया सही नहीं है, जंगल है, पता नहीं कितने लड़के रहते होंगे, क्या आने जाने में सुविधा नहीं है। बस सप्ताह में 1 दिन ही गाड़ी चलती है हम लोग की। नहीं, किडनैपिंग के केसेस भी सिर्फ हुए हैं। 1 दिन ही चलती है, जिसको जो कमी रहता है वो 1 दिन, एक गाड़ी है जो सवारी जो टाइम से 11 बजे निकलती, जो जा पाया सो गया, जो नहीं जा पाया वो
ये हमारे वो अगले बहुत बार सारे गांव में भी जब गए थे हाँ वहाँ पे भी वेट कर बहुत रहा सारे है। एडोलेसेंट हाँ, के, जिसके ठीक है। कारण कितने 5 तक ही बस करके हाँ, एकदम। छोड़ देती है। उसके बाद फिर वो हिम्मत भी नहीं कर पाती और पेरेंट्स भी नहीं कर पाई, नहीं मतलब इजाज़त नहीं देते हैं कि तुम पढ़ो से, खास करके लड़कियों को। सेफ्टी लड़के तो जाते हैं, लड़के जाते हैं, वो लोग पढ़ाई हम भी लोग करते हैं। थोड़ा ऑडियंस को भी मौका देंगे सवाल पूछने का, तो थोड़ा बहुत डिटेलिंग उसमें भी आ सकता है ना। एक फाइनल चीज़ मैं, गनौरी आप कुछ ऐड करना चाहोगे तो आप ऐड कीजिएगा, और फिर अविनाश मैं आपके साथ क्लोज करूँगी एक पर जल्दी, सॉरी आप दोनों का थोड़ा टाइम कम हुआ, बट कोई नहीं बोलिएगा। ये लो। हाँ, तो फिर से आता है झारखंड की बात जब करते हैं, तो झारखंड का जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, बहुत बहुत मतलब रिजिड कहिए या ऐसा है कि बाहर से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ है। डॉरी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, झारखंड के बारे में आप जनरली जाइएगा, पढ़िएगा, तो आपको ये प्रैक्टिस में है कि झारखंड के ट्राइबल में देयर इज़ नो डॉरी प्रैक्टिस एज सच, वो डॉरी नहीं लेते हैं। बहुत सारे इसके रीज़न है कि आप मतलब छोटा जब रहते हैं तो वहाँ पे लोटा पानी, या एक टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो है घर बरी। मतलब 3-4 साल के भी अगर होंगे बच्चे तो उनको घर बरी कर दिया जाएगा, और उनको जब भी शादी हो, वो आफ्टर 18 हो या पहले, तो उन्हीं के साथ करना होगा। सो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मैरिज है उनके अनुसार, राइट। लेकिन एक मिनट सर, वो जो नियम है ना, हम उस समाज से आते हैं, इसलिए अब जब सर बोले घरभरी की जो बात होती है, आदिवासी समाज में है ये नियम है। यानी जब लड़की 4 या 5 साल की होती है तो उसका किसी लड़के के साथ, जिसके साथ उनको विवाह करना है, उनके माँ बाप तय करते हैं कि उनके साथ उसका घरभरी कर दिया जाएगा। एक नियम है, जैसे शादी का जो रस्म होता है उसी प्रकार से एक रस्म है कि घरभरी होता है वो बेटी का जिसके साथ विवाह होना हो। और जब वो बेटी जब बड़ी हो जाती है, वो चाहेगी कि अब हम उससे विवाह ना करें, या फिर हम अपने मन से करें, या फिर अपने पसंद से करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके साथ घरभरी उनके नियम के अनुसार उनके साथ हो गया है, तो चाहे वो ना चाहकर भी उनके साथ ही रहना है। और लड़कों में ऐसा नहीं है, लड़का में है कि वो अगर यदि दूसरा से शादी कर भी लिया है तो पहले जिससे घरभरी किया है ना उसको भी ला के रखेगा और उसको भी रखेगा, ऐसे है। मतलब ये नहीं है, लेकिन घरभरी हुआ है तो उसके साथ कंपलसरी की शादी करना है, नहीं करेगा तो समाज के लोग उसको दंड देगा, लेकिन रखना ही रखना है, ऐसा एक नियम है। तो दूसरा था ये डॉरी के संबंध में कि हम लोग एडवांस हुए हैं, इतना एडवांस हो गए हैं कि ये फाइंडिंग में ये निकल के आया है कि अब एसटी समाज में भी दहेज लुके छुपे या कहिए, क्योंकि हमको भी तो डेवलप होना है, हम शीत लोग रूप से चल रहा है, दहेज शीत रूप से चल रहा है, हमें भी नहीं अब चल रहा आप वो लोग बात। के जैसा दिखना है सो कॉल्ड, इसलिए अब हम भी दहेज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है कमाने को लेकर के, आप पढ़िएगा, बहुत सारी आर्टिकल्स मैंने ही पढ़ी है और आप लोग भी, कि जितना लड़कों को काम करने का, जैसे अभी हमारे फाइंडिंग्स में भी आया, रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन के लिए भी जाते थे, तो लड़कों को काम में भेजा जाता है तो लड़कियां भी भाटे पे जाती है काम करने। काम हम भी करते हैं, एसटी गर्ल हैं, एससी गर्ल हैं, लेकिन मोबिलिटी का अब हम भी काम करने लगे। हम मतलब आप लोग निकल के यहाँ काम कर रहे हैं, हम भी वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं डिफरेंस। काम कर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई हम छोड़ करके भट्टे पे काम कर रहे हैं। हमें पढ़ाई करना चाहिए था, लेकिन हम अपने खाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, दोनों को काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन इक्वलिटी किस लेवल पे आ रही है वो हमारे लिए एक चिंताजनक है। दूसरा एक चीज़ और है, सेक्सुअलिटी की जब बात होती है तो बहुत सारे झारखंड का कल्चर में प्रैक्टिस था, है ना। एक तो वहाँ पे क्या था कि लड़का लड़कियों को धुमकुड़िया भवन एक हुआ करता था, आप लोग इस रिसर्च रिपोर्ट में ही पढ़िएगा, जहाँ पे लड़कों लड़कियों को बताया जाता था कि आप कौन हैं, क्या हैं, एक दूसरे से रिश्ता, समाज में रिश्ता किस तरह से, ये विलुप्त हो चुके हैं। आज सोशल मीडिया है, आज हमारे पास भी मोबाइल है, राइट। सोशल मीडिया पे हम भी फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन नेटवर्क का अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, एक टापू पे स्कूल था, और झारखंड टापू ही होता है, मतलब टापू आइलैंड वाला नहीं, सॉरी, मतलब पहाड़ वाला।
तो वहाँ के गुरुजी का बहुत मतलब टीचर का रिस्पांस था कि जानते हैं सर यहाँ पे परिवर्तन कैसे आएगा, वो आया है मोबाइल आने से। आप इतना ट्रेनिंग दे लीजिए, स्कूल में पढ़ा लीजिए, कुछ नहीं होगा। इनको मोबाइल दे दीजिए, ये मोबाइल में सब कुछ देख सकते हैं। अगर इनके साथ आज जीबी मतलब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, वायलेंस होगा, तो ये तुरंत जानते हैं कि हमको कॉल करना है। इतना तक हम भी आ गए हैं। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और इस परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सभी का सहयोग इसी तरह से मिलेगा तो बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। तो काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, हम अनफॉर्चुनेटली टाइम के लिमिटेशन की वजह से, बट आप थैंकफुली आपने टच किया वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात होती है, एंड खास करके स्किल सेंटर्स जो अभी उभर के आए हैं, काफ़ी पुश होता है, मगर उसमें भी हम बहुत जेंडरिंग देख रहे हैं कि जैसे कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है और लड़कियां कौन सी ट्रेनिंग लेती हैं, बट उसमें भी एक लिमिटेशन है कि बहुत सारे आपको नौकरियाँ मिलेगी झारखंड के बाहर, हाँ। जो एक सीरियस इम्पेडिमेंट है। काफ़ी लोग घर से भेजना नहीं चाहते हैं। है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये सब पूरे डिटेल में अब इतना टाइम नहीं है, बट मैं अविनाश के साथ समाप्त करना चाहूँगी। अविनाश, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, अगेन अर्थ शैटरिंग फाइंडिंग नहीं है, नया कुछ नहीं है, बट बार बार ये हमें देख के समझाने और गहराई में जो इन डेप्थ को समझने की जो बात होती है, सबसे ज़्यादा खास करके ये जो एज ग्रुप है 15 to 18, उनकी ओल्डर एडोलेसेंट की सेक्सुअलिटी पे मिलिटेंट एक तरीके की पुलिसिंग और सर्वेलेंस होती है। और हमारी स्टडी में सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्टिंगली स्कूल में जो एक फेमिनिस्ट असर्शन भी होता है कि मज़े की बात, लीजर, खुश, फन की बात जो होती है, उनको स्कूल में मिलती है, उनको घर में वो नहीं मिलते हैं, कम्युनिटी में नहीं मिलते हैं ना। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और आसपास की इतने, आपको याद है वर्कशॉप्स में कितनी एडोलेसेंट्स ने बोला था कि पड़ोस वाली आंटी ने ये बोला, पड़ोस वाली आंटी ने, इनकी सबसे ज़्यादा चिंता उनका है। तो ये अगर ये हमारा रियलिटी है, हमारी प्रोग्राम के जो चलने में आपको क्या लगता है हम थोड़ा और कर सकते हैं या करना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा, और ये भी हम जानते हैं कि इसमें ऑब्वियसली धीरे धीरे ही होता है, बट हाँ। तो एक्चुअली हम लोग जो प्रोग्राम के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं एडोलसेंट के साथ, वहाँ 15 to 18 में, उस एज में एक्चुअली क्या होता है कि सोसाइटी की पर्सपेक्टिव है कि आप मेल के साथ नहीं बात कर सकते हैं और उनके साथ घूम नहीं सकते हैं, आप रास्ते में अगर मिल गए तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सी चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके एजुकेशन पे असर डालती हैं और उनके जो फ्रीली मूवमेंट हो, घर से स्कूल और या मार्केट हो गया या समुदाय में कहीं भी जाना हुआ, तो वो इजीली कर पाती है। लेकिन अगर इस सिचुएशंस में अगर उन्हें देखा जाता है तो सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि उन्हें उन सब चीज़ों से रोका जाता है, बजाय इस शर्ते कि वो एजुकेशन से भी उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो ये चीज़ें दिखती हैं अभी भी, जिसको लेकर हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉर्ट आउट हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग बात कर रहे हैं और इसको एक गलत तरीके से भी देखा जाता है। और स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं, तो वहाँ पे वो इजीली मूव करती हैं, साथ में खेलना हो गया और बातें करना हो गया, जो ये कम्युनिटी में नहीं हो पाता है। तो वो उनका एक तरह का बोल सकते हैं एक रेस्ट एरिया हो गया कि वहाँ पे वो कंफर्ट फील करती हैं, वहाँ टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी ये भी चीज़ें देखा जा रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट भी काफ़ी आ रहा है स्कूल्स में भी। बच्चियाँ वो इनडायरेक्ट वे में पहचान पा रही, जब से तारों की टोली कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ है तब से वो चीज़ों को पहचान पा रही हैं, क्या हमसे गलत हो रहा है, क्या सही है, और इसको इन्होंने बात करना भी शुरू किया है। ये जो हो रहा है टीचर्स के साथ और डॉसेंट के बीच में, ये चीज़ें भी वो पहचान कर वो बात करने लगी हैं, उनको बता रही हैं कि इंडिकेट जो आप कर रही है गलत है। तो ये चीज़ें भी अभी निकल कर आ रही हैं एज इट इज़, और अभी इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमको लगता है कि इसमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है, खास करके पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स का सोच बदलेगा तभी वो मतलब कि एडोलसेंट को उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाएगा जिस तरह से हम लोग अभी चाह रहे हैं कि फ्रीली एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना जहां लोग सम्मान और समानता से के नज़रिए से देखें वो चीज़ें। तो उनके लिए अभी हम लोग भी सोच इसके तहत एक रैपो बिल्ड करके एक जो उनका नैरेटिव है वो कैसे उन तक पहुंच पाए, वो चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसको कोशिश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो तारों की टोली जो कार्यक्रम है, ये तो हम लोग एक
छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं और इसको बड़े स्तर पे काम करना भी ज़रूरी है, ताकि ना लोग अधिक से अधिक अवेयर हों, चीज़ों को पहचाने सही और गलत को लेकर। जैसे कि अभी पंजाब और उड़ीसा में स्केल अप का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो एट इज़ सब्जेक्ट में इनबिल्ट है, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर कैसे पेरेंट्स के साथ इंगेज। तो टीकेटी का जो पेरेंट इंगेजमेंट बुक है वो इसलिए भी बना हुआ है कि कैसे पेरेंट के साथ कम्युनिकेट, क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं होता है, वो सुबह जाते हैं सीधा रात में आते हैं, और उनके पास ये भी होता है कि वो इतना थक जाते हैं कि वो पेरेंट बच्चे से मतलब एडोलसेंट से पूछते भी नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जो पेरेंटल इंगेजमेंट का जो बुक है वो उन ऐसे क्वेश्चंस बने हैं कि वो उनसे पूछ कर रिलेट कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं एक अनुभव भी उनको अपने पेरेंट्स से मिलता है कि आपने का भी ये सपना था लेकिन अब सपना बदल गया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी निकल कर आ रहा है कि कैसे ये सपने बदलते हैं और उसके लिए हम कैसे तैयार रहे, अपने लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ें नो डाउट इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, बट सरकार के तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो जिस कारण से उनको उतना अवेयरनेस और नॉलेज नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार की भी जो वीडियो वैन्स वगैरह चलती हैं तो हम लोग जो प्रोग्राम के तहत काम करते हैं उसमें वीडियो वैन्स चलते हैं, तो हम लोग ऐसे स्पेस चूज़ करते हैं कि जहाँ पे अधिक से अधिक लोग कम्युनिटी इंगेज हो पाएँ और वो अधिक से अधिक वो चीज़ के लाभ उठा पाए। तो ये गवर्नमेंट के साथ नहीं होता, वो ऐसे ही वीडियो वैन चलते जाती हैं, वो अनाउंसमेंट होता रहता है, कोई सुनते हैं कोई नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं उन स्कीम के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो एटलीस्ट ब्रेक थ्रू का इस तरह से एक मॉडल तैयार किया गया है, तो थैंक्स, हम अपने आप को बहुत ऐसा फील करता हूँ कि एटलीस्ट मैं इनके साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। तो एज वेल थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, लेकिन हम लोग कंटिन्यूस काम करते रहेंगे तो एटलीस्ट एक दिन हम लोग अचीवमेंट में पहुँचेंगे ये चीज़। थैंक यू सो मच अविनाश। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है सपोज टू एंड ये सेशन के लिए, एंड ऑल्सो बिकॉज पेरेंट्स के बारे में हमने बहुत जिक्र की, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू हाईलाइट कि इसमें कोई भी एक विलन नहीं है, दिस इज़ नॉट टू विलीफाई। पेरेंट्स भी अपने तरीके से अपने सोशल सर्कमस्टांसेस से आते हैं। हम जानते हैं कि हर कॉन्टेक्स्ट की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज़ होती है, चैलेंजेस होती है, उस चैलेंजेस में काम करना बहुत ज़रूरी है, उस चैलेंजेस को पहले समझना बहुत ज़रूरी है उसमें काम करने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग रेटरेट करते हैं हमारे इमेजिनेशन ऑफ प्रोग्राम में भी ये सीडेड है कि इंडिविजुअली नहीं हो सकता। इट्स नेवर, जो हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और हर चीज़ की जो सोल भी है, कलेक्टिव में सब कुछ है, कलेक्टिव में स्ट्रेंथ है। और जब अडोलेसेंस की आसपास की दुनिया बदलेगी तब उसकी भी ज़िंदगी बदलेगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये सारे कॉन्वर्जेशन जितना बिगर स्पेसेस में हो सके, उनकी कम्युनिटीज़ में हो सके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रहे। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो स्कीम चल रहे हैं और जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उनसे भी बहुत हद तक रिलेट करता है, क्योंकि अभी जो GPDP आया, ग्राम पंचायत विकास योजना, इसमें महिलाओं और बाल हितैषी को जोड़ा गया है, क्योंकि महिला हितैषी गाँव बनाना है, बाल हितैषी गाँव बनाना है। तो क्योंकि हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो वहाँ सीधा फंडिंग होता है डेवलप्ड से, यानी जहाँ पैसा, तो वो उस पर ही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो विदाउट फंडिंग ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसको कैसे, तो हम लोग इस बार PRI जो मीटिंग्स किए थे तो बहुत सारे चीज़ें निकल कर आई। तो उन्होंने खुद लिखा है कि जीरो फंडिंग को लेकर भी हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। अब जैसे कि गाँव में बहुत से ऐसे एडोसेंट हैं जिनके आधार कार्ड नहीं है, है ना, तो वहाँ कॉस्ट नहीं लगना है, एक सर्वे करना है, फिर उसका लिंक कर देना है, तो वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो बात करते हैं, अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सोसाइटी में कोई नहीं बात करता है, क्योंकि हम लोग अभी सेफ्टी ऑडिट भी कराए थे, तो कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, 6 बजे के बाद मोबिलिटी कम हो जाए, ज़ीरो हो जाती हैं, महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, तो ये चीज़ें भी निकल कर आया। तो इसको लेकर भी हम लोग ने वीडियो सर के साथ मतलब कि इंटरेक्ट कराया, कि उनको बताया गया कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनको भी लगा कि ये चीज़ें तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन डेप्थ लेवल पे इस तरह से चीज़ें हो पा रही हैं, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि हम लोग समुदाय में ही उनको इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जब मतलब PRI मेंबर्स की बात करें तो उनको डायरेक्ट कहना है कि उनका फंडिंग नहीं है। तो वीडियो सर ने ये भी कहा कि ये फंडिंग नहीं है, लेकिन हम अपने समुदाय में बात कर सकते हैं, ताकि वो एक कमेटी बनकर फिर उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ भी हमको उनके साथ
वो भी समझ पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये सही है, हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ भी निकल कर आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच अविनाश। अभी 1 o'clock हो चुका है, बट जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लाइक 10 मिनट लंच आवर से ले रहे हैं, तो अगर किसी का सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा। माइक है वहाँ पे? हाँ, हेलो, आप सुन सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ब्रेक थ्रू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप एंड बेसिकली डायलॉग। सो मेरा दहेज से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आपने बताया कि आपने लड़कियों से तो बात करी, पर आपने लड़कों से भी बात करी या दहेज पे, और उनका क्या सोचना है कि इतनी भ्रूण हत्या होती है और क्या वो अपने जीवन में दहेज लेंगे? तो अगर आपने कुछ बात करी हो लड़कों से भी तो। नहीं, ये स्टडी फाइंडिंग का हम स्टडी बस हमने लड़कियों से ही की थी। देयर वर Okay. नो बॉयज इन्वॉल्वड अनफॉर्चुनेटली। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यहाँ पे भी शैलजा, हाँ जी, लेकिन लड़के सान बांध में रहते हैं कि हमको लेना ही है दहेज। एक सेकेंड, सॉरी, कुछ तो कंचन बोल रही है। बोलो। लेकिन ना झारखंड समाज के मतलब जितने भी लड़के हैं ना, सब अपने लड़का होने पे शान बान में रहते हैं कि हमको तो दहेज मिलेगा ही, और जो तो नौकरी कर लिए हैं वो तो और ऊंचा, मत पूछिए, जहाँ 5 था वहाँ 10 हो गया सीधे। ऐसे उनका मतलब ये सोच बन जाता है। ये नहीं कि हम नौकरी कर रहे हैं तो बिना दहेज का शादी करें, ऐसा नहीं है। वो अपने शान बान में अड़े रहते हैं कि हमको तो दहेज लेना ही लेना है। ये हमारे मतलब रिसर्च का पार्ट नहीं था, लेकिन ये क्योंकि उस जगह से आती हैं तो शी हैज़ दिस, मतलब इनको है नॉलेज इस एरिया के बारे में, तो बॉयज़ के साथ इंटरेक्शन है इनका कि दहेज तो लेना ही है। और पढ़ रहे हैं तो वो सोच के ही पढ़ते हैं कि अभी कुछ बैंक में जॉब लगे तो 25, मैनेजर हो गए तो 50, और ऐसे बढ़ते जाते। मतलब जो सामाजिक ढांचा जो बन गया है ना, उन पे उनको गर्व है कि दहेज तो हमें मिलेगा ही क्योंकि हम बेटा हैं। सबसे बुरी बात है कि ये आदिवासी कल्चर में भी जाते जा रहा है, जहाँ पे नहीं था। हिस्टोरिकली आप देखिएगा तो इट इज़ नॉट देयर, मतलब नहीं है। इन्फ्लुएंस नेबरिंग मतलब नेबरिंग कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लाइक बेसिकली हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा ही डाउरी है, तो हिंदूज़ आसपास है तो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनका एक अलग, क्योंकि दहेज लेते हैं ना तो अच्छा अरेंजमेंट कर पाते हैं, डेकोरेशन एंड एवरीथिंग, तो उनको लगता है कि इतना लैविशिंग अरेंजमेंट हम भी कर सकते हैं अगर हमको भी पैसा मिले तो मैरिज को और मतलब कि मतलब मेमोरेबल बनाने के लिए डेकोरेशंस एंड ऑल ऑफ दैट दूसरे के पैसे से, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे के पैसे से ही इतना हो सकता है। मतलब जो बेटे जो नौकरियां करते हैं ना, जो शुरू से जो उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका पालन पोषण का खर्चा, सारा खर्चा लेना है बेटी के बाप से। वो यानी बच्चा से ही दूसरे पे निर्भर है एक तरह से। पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, आप लोगों ने अच्छे से पूरा निचोड़ दिया जेंडर नॉर्म्स का, कि शायद हम सबको ही अंदाज़ा हो गया कि झारखंड में बाइनरी जेंडर नॉर्म जब हम देखते हैं तो कैसा दिखता है। तो उसके लिए तो आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरा सवाल ना आखिरी वाला था आपसे, आपने वो नो कॉस्ट बात करी जी। है ना, तो वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट जो अभी चली है हवा, हाँ, तो उससे तो काफ़ी खलबली मची है। तो ये जो लो कॉस्ट नो कॉस्ट और कॉस्ट इंटेंसिव प्रोग्रामिंग की दिशा जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो जेंडर मुद्दों पे वो कहाँ डालते हैं? जेंडर को वो नो कॉस्ट में डालते हैं, लो कॉस्ट में डालते हैं, कॉस्ट इंटेंसिव में डालते हैं? आपने क्या देखा है? वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि वहाँ कॉस्ट ना लगे। ये आपको बोलना था। ये और एक्चुअली क्या है कि जब कॉस्ट की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पे उनका कहना है गवर्नमेंट स्टेक होल्डर का कि वहाँ पे नहीं है, ये हमारे को ऊपर से ही नहीं आया है। और क्योंकि जब इस पे बात करते हैं कॉस्ट की, तो PRIs भी बोले कि इसके लिए तो हमको फंडिंग चाहिए होगा, तो ऐसे तो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर है उन्होंने कहा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो भी गाइडलाइन आती हैं वो ऊपर से आती हैं स्टेट से, क्योंकि सारा कुछ मॉडल वहीं बनता है, उसके बाद फिर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये सोसाइटी पे छोड़ दिया कि आप लोग सोसाइटी में एक कमेटी
रिकमेंड करिए, वहाँ पे वो चीज़ें लाइए, फिर क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है, कौन सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली यही चल रहा है, आत्मनिर्भर। यस यस। मैं कुछ इसके बारे में सैम्पलिंग के बारे में समझना चाहूँगा, जो झारखंड के बारे में आप बोल रहे हैं, जो आपने सैम्पलिंग करी रूरल अर्बन, तो जो डेटा उभर के आया या जो आपकी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, व्हाट वाज योर सैम्पल? आप व्हाट वाज द रूरल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट वाज द अर्बन, और योर फाइंडिंग्स, इज इट concentrated or is it, let's say, biased towards the rural centers, or have you taken samples from the urban centers as well? I mean, the rural centers है primarily, but urban वैसा है नहीं. But there are, for example, कटकम संडी में जो locations था वो largely town के आसपास में था, so there is an influence of that. In fact, और टाटी जरिया में जो काफ़ी जगह थे, they were fairly removed. जैसे कंचन ने अभी mention किया, बेडम हुआ, होलाम हुआ, वो सब specifically rural है, heavily rural है. Accessibility, like एक हफ्ते में एक बार वहाँ से कुछ गाड़ी जाती है, it's not even a bus or anything, it's largely a tempo sort of a thing. और उतनी mobility बहुत severely restricted है, but primarily rural, and that is a limitation which we flagged report में भी, that it's a जो हमारी जो intervention area है हज़ारीबाग में, उसी के ब्लॉक में जो ये तो ब्लॉक हमने चुने हैं, and हमारा जो sample size है 60 participants है, adolescents से हमने जो बात की है 30 stakeholders से बात की है, and around 9 FGDs किए हैं हमने पेरेंट्स के साथ. and important note है कि पेरेंट्स हमने स्प्लिट करके जिया था कि मदर्स के साथ सेपरेटली एंड फादर्स के साथ सेपरेटली, एंड इसलिए भी बिकॉज एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट द मोमेंट यू पुट देम टुगेदर मदर्स टेंड टू गेट sort of sidelined. Okay, and again, now let's not speak quantitatively, but can you qualitatively remark on the fact that would you see the same distortion, or would you make the same remarks for the urban centers, as in your findings from the rural center, would you have similar findings from the urban centers? आई थिंक सो. लार्जली देर इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल जो कटकम संडी के जो एरियाज़ की बात हो रही थी, वहाँ पे भी हमने सिमिलर कंसर्न्स ही देखे हैं. कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा वेरिएशन होता है, खास करके उस एरिएशन में ट्राइबल और दलित में थोड़ा वेरिएशन दिखता है, बट लार्जली द इशूज़ लार्जली रिमेन द सेम. दर इज़ नॉट मच ऑफ अ मार्क डिफरेंस. मोबिलिटी इज़ परहैप्स वन क्रिटिकल थिंग. इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअलिटी नॉर्म्स के अराउंड दर इज़ नॉट मच ऑफ वेरिएशन. इट्स परहैप्स इक्वली स्ट्रिंजेंट, बट मोबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है, some sort of peri-urban and rural. हाँ, मतलब उसमें आप बोल रहे हो कि गांव और इसमें थोड़ा फ़र्क है, उसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, बोलिए उनको, हाँ बताओ. कटकम सांडी और टाटी जरिया, जो कटकम सांडी विच इज़ क्लोज टू द अर्बन प्लेस, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कपड़ों को लेके है थोड़ा डिफरेंस. मतलब टाटी जरिया में विच इज़ कम्प्लीटली अ रिमोट एरिया, तो वहाँ पे है कि द ड्रेस इज़ डिफरेंट, लाइक साड़ीज़ एंड सलवार एंड विद दुपट्टा लाइक दैट. बट इन कटकम सांडी वी हैव सीन गर्ल्स ड्रेस like how we dress, jeans, t-shirt like that. So with the dress thing it's a little different, otherwise more or less the same. ड्रेस के बारे में मतलब जो है ना, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, मतलब हमारे समाज में ऐसा भी है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, तो वहाँ यूनिफॉर्म चलता था जो कि सूट था. वो मेरे लिए अलाउड नहीं था, हम घर में नहीं पहन सकते थे, चाहे तुम पढ़ाई भी छोड़ दो लेकिन नहीं पहनो. हाँ, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम ये अलाउ नहीं है. तो हमको कितना बार एग्जाम के समय गेट पे ही रोक दिया जाता था यूनिफॉर्म के चलती. फिर टाइम भी हो रहा इधर, लेकिन HOD जो थे वो मतलब लेडीज ही थे, तो उनके साथ हम आवेदन करते थे, उनसे परमिशन लेते थे, उसके बाद हम जाके एग्ज़ाम लिखते थे. लेकिन हमको सूट पहनने के लिए नहीं मिला, नहीं अलाउ हुआ, कभी भी नहीं. जो आपका है कल्चर, साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, वो होना चाहिए कंपलसरी. इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है कि आप चाहे ये पहनो चाहे ऐसे रहो, ये नहीं है. हाँ, बेडम एरिया, टाटी जरिया ब्लॉक. सो दिस द डिफरेंस. Hello, my name is Shailesh. I'm from SpecTrack. Just a couple of points of appreciation and one small question. Sorry, I may not be able to articulate so well in Hindi, so please allow me to speak in English. One thing, I was quite impressed about this whole thing of research of positionality, the way you all spoke, where you come from. Generally, when we go to the communities and try to find out about them, generally we as researchers we never think of this research of positionality कि मैं कहाँ से हूँ.
और what मैं कहाँ से हूँ और how that relates to what I'm finding. So I really appreciate that first point very much. 2 points, most of the researchers always struggle the ethicality of the whole thing. जैसे कहा कि there is an expectation, अगर हम आपको इतना समय दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है रिटर्न, एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन आई हैव स्ट्रगल्ड as a researcher for a long time ki how does it, how fair, I mean there is both pro and con for it, but that is one question always remains, and I would really love if somebody from Breakthrough could throw light as to what is it that you think about it, and something I have no answer, but I'm always looking forward to people listening to people as to what they think about that. That's second point. And third thing is that the Taro Ki Toli program is a program for both girls and boys, or you work only with girls? Girls. Only with girls. Okay, so the intervention with boys. Girls. All right, that's fantastic. But then, why was it a choice that you have not spoken to boys about the thing? I mean, I appreciate that you have spoken to girls, but was there any specific reason, or is it something which will be done later? So there's one more point, I forgot what it was, but yeah, thank you. Maybe I can like take a crack at it first and then I can give it to Ganori. Research personnel, I mean, thank you. I'm glad that it's gone down well. In terms of like basically remuneration नहीं, but in terms obviously taking up their time, this is something हम लोग ने भी बहुत struggle किया था, because particularly this जो अविनाश ने mention भी किया है कि these are all largely daily वेज लेबरर्स, राइट. तो अगर आप उनका टाइम, जो हमारे डेटा कलेक्शन के टाइम पे भी बहुत चैलेंजेस रहा था, मिलना बहुत मुश्किल है, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू देम दे हैव टू let go half a day's work or one. And we did have a discussion, but unfortunately जैसे आप भी struggle कर रहे हो, हमने, because one also struggles. I know that there's a lot of conversation in literature on this कि do you want to financially pay them for their time, or do you want to look at other kinds of benefits? And I unfortunately we don't have an answer, but it's something I think that we are also equally mindful of. At least जो हम लोग इस data collection के time पे what we did attempt doing is that हमने कोशिश पूरी की है कि उनसे पूछा कि आपको क्या, कौन से टाइम अवेलेबल कन्वीनियंट रहेगा, और हमने ये ज़रूर कोशिश की कि सबसे ज़्यादा इनके साथ शाम में बात करें, ताकि इट डजंट इफेक्ट they're still tired, of course, they've had an entire day of exhausted work and all that, but at least it doesn't take away from their like financial whatever sort of security. दूसरी बात, I think at that point we wanted to understand, I think there is of course scope and we want to build on this further, but हमने सोचा एक mapping exercise separately first with girls करते हैं, और उसके बाद it's a good idea first we get our sense of this, and then we can take it and then sort of use perhaps mount a bigger study involving more boys, and then also look at a comparative at that point, because we also thought of this as a smaller, like the scale of the study at that point when we had envisioned it initially छोटा ही था, इसलिए we limited it to girls. अगनौरी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? करूँगा। मेरा जो अनुभव रहा है, खासकर इससे पहले मैं गवर्नमेंट मतलब बॉडीज़ में जो है BPO हैं, मतलब मनरेगा पे मैंने एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया था, इसके बाद फादर्स के रोल पे किया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे रहता है, तो ये सवाल मेरे पास भी था सर। और जब भी बाहर से कोई आते हैं तो ये रहता है, जैसे आप जान रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारे स्कीम्स बम्बार्डिंग किया जा रहा है, क्योंकि उसको दिखाना है। इसका कारण है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहाँ से रॉयल्टी भी आता है, उसको खर्चा भी वहाँ करना है, दिखाना है ना कि आपसे हम ले रहे हैं तो इतना सारा पैसे भी दो, लेकिन वो और कहीं पैसा कहाँ जा रहा है वो अदर डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो, कहाँ हो रहा है। हाँ, तो ये वाला पार्ट पे की मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको, तो इसमें जो लोकल होने का वहाँ, दूसरा कि उनका जो टाइम है उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालें, उनमें जाएं, और दूसरा कंसेंट तो ऑन पेपर रहता है, लेकिन जब तक वो अपनापन फील नहीं आएगा ना, और आप ये क्लियरली कह दें कि हम आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं, इनिशियली डिसअपॉइंट होते हैं कि फिर आए इनको तो कुछ नहीं, वो फलना मैडम आते हैं ये करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं क्लियरली आप करते हैं बातचीत, और एट द सेम टाइम जो आप टीके के बारे में जान रहे हैं, उस कम्युनिटी में जान रहे हैं, तो आप रेफरेंस के थ्रू जाते हैं कि हम, हाँ भैया आते हैं, दीदी आती हैं यहाँ से, इतने दिनों तक आपसे बात कर रही हैं, तो उन्हीं के बारे में कि इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इसको और कैसे
सुधारा जाए, जब इस तरह की बातें आप रखिएगा तो डेफिनेटली दे थिंक अबाउट कि नहीं, मतलब यहाँ पे हमारी बच्चियों का अल्टीमेटली, या हमारे बच्चों का, हमारे समाज का भला होने वाला है। अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं कि उनको केवल पैसा ही चाहिए। दे थिंक अबाउट दैट, बट दैट इज़ नॉट ऑन प्रायोरिटी, है ना। तो प्रायोरिटी सेट करवाना पड़ता है। This is what I had to say. I would like to answer your question. I mean, first part of the question. Like, I have come across this question many a times. What you asked, that how do you deal with the questions that they ask? That what will you get? Like immediate benefit. What are we getting if we are giving time and everything? So I prepared something like 2-3 quotes. मतलब in very close relation to them, that how they can understand. Like I used to say, when they used to say me, क्या मिलेगा ये सब करके, आप इतना पूछते हैं, इतना काम है हम लोग को, बाद में कर लीजिएगा, क्या मिलता है, इतना तो हम लोग उतना महीना से कर रहे हैं, क्या मिलता है। तो आई यूज़ टू आंसर, आई यूज़ टू से कि आप मुझे एक बात बताइए कि घर तो तुरंत बन जाता है, महल बनने में वक्त लगता है ना। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू कन्विंस देम, so that they can sit with me comfortably and then listen to me and answer. And then also I used to relate to the work that they धान काटने गए हैं। तो I used to say कि एक बात बताइए, हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है ना, कल्टिवेशन का टाइम, उसको मैच्योरिटी का टाइम, एंड देन हार्वेस्टिंग। तो अभी अगर आप जो कल्टिवेट कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड हर चीज़ का होता है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप एक बात बताइए, एक बिल्ली का बच्चा या एक कुत्ते का बच्चा, वो 1 साल में अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने भी लग जाता है। पर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। उसको 18 ईयर्स का मतलब एडोलेसेंट के बाद भी मतलब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव तो हो जाता है, बट मैच्योरिटी लेटर ऑन आता है उसमें। तो आई यूज्ड टू से कि एक बात बताइए, डिफरेंस है ना। अब आप हर किसी को कुत्ते और इंसान और बिल्लियों से मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, उनका एक लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड अलग है। तो वैसे ही आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा पर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये चावल गेहूं के जैसे नहीं कि 3 महीने में हो जाए, और कोई फसल तो 1 महीने में भी तैयार हो जाता है। तो आप वहाँ तो क्वेश्चन नहीं करते ना कि इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई पर्सनली डेल्ट विद दिस। लाइक आई यूज्ड टू मतलब गिव देम एग्जाम्पल्स एंड देन कन्विंस देम। दिस इज़ द वे आई डेल्ट विद दीज क्वेश्चंस। Thank you. Thank you, Shrika. Unfortunately, we are out of time. Maybe we can take one final question. I want to make a comment rather than a... I played a small part in this research project. Yeah, this is Gracie Andrew. Yeah, I'm Gracie Andrew. And one thing about the methodology that I wanted to share, which is very special about this project, is getting local people involved right from the beginning, and not just teaching them or training them to collect the data, but to be involved at every step, because they can go beyond the experiences. So what happens is, generally I've been part of a number of qualitative studies. The participants will give politically correct answers when you ask, especially about gender, because everybody knows what's gender. But when you get local people involved and local women involved, they can go beyond that because they're from that culture. So that is I just wanted to highlight this about the project and the effort that went into getting them trained. And I think that we should go beyond just collection of data. We should learn how to get them involved in actual analysis of data. Because when I was doing the analysis, I felt, if I could actually train these people to get into analysis, we could get much, much more richer findings. So that is something I wanted to highlight. The other thing about the findings I wanted to kind of just talk about is that we often say, yes, parents are the people that we have to focus on. But in many of these families, it's not always the parents. It's the person who has the power, and sometimes it can be an elder brother, it can be an elder cousin, it can be some relative. So it's very often a male who has a power in the family that kind of makes decisions and kind of influences a lot of the gender conversations that happen. So when we think in terms of interventions, we have to kind of widen it towards the family and communities rather than just focusing on the parent. So just these two things. Thank you. No, thanks so much, Gracie. And also that's an important point, and I'll just add that here, and unfortunately we'll have to end because we'll have to break for lunch.
Okay, one more question apparently. But just to also add to that, no, Gracie, FGDs it's not that we have only spoken to the fathers. We have something that's also, I think, in our program also we are very mindful of, that we do involve elder, like male members of the family. So sometimes they're older brothers, uncles, chachas, and all of that. So wo incorporated hai, but I understand that of course it needs a lot more concerted effort on that. Yeah. So one final question. Yeah. Yes, Good morning. Thank you for organizing such a wonderful thing by Breakthrough and also making it live stream. So I was part of the live stream to some extent. I have been hearing the findings and other. I would, if I missed, I would like to know some kind of intersectionality approaches in the key findings, because we know physically challenged people, caste-related ethnic groups also there. So any finding that you feel this is more critical for this kind of intersectionality oppressions? Thank you. So it's a tiny pool, ma'am. 60 participants have, but the intersectionality is that there are 30 Dalit adolescents and 30 are Adivasi adolescents. So that's the lens that we brought in, and that's something that we have also been mindful of in the process. So we've been mindful of involving people from these communities also in the research process, and of course in the analysis as well. So I hope that answers your question. We couldn't, because obviously, as you all know, there are multiple factors when a project takes off, time and funding and everything. So unfortunately we couldn't expand. Of course there's always room to improve, but that is of course a limitation. Thank you.